I feel like crying. I want to cry, but then I do not feel that safe space. I do not feel that, if I'll cry, somebody will understand or somebody will just say that, okay, cry. I'm not saying anything. जब उन्नति को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको साइड में भी यही बोला था कि वो बंदी देखो घोस्ट करने की बातें कर रही है, तो उसको बचाने की बातें कर रहा है। शैंकी मैं लड़ सकती हूँ जब मैं नॉर्मल हूँ। अगर मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है ना, मैं नहीं लड़ सकती। कशिश इज़ केपेबल इनफ टू फाइट हर ओन बैटल। उसको टेक Absolutely. मैं बता रही हूँ उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो बैडएज़ है, वो बैंड बजा सकती है इंसान की। मेरा तो लव लाइफ़ इतना अब रहा है ना, जैसे मैंने रोडीज़ में भी बताया था दैट इन द मिडल ऑफ द किस द मैन सेड दैट इट फील्स लाइक आई एम किसिंग अ मैन। ये भी मेरे साथ हुआ है एंड आई हैव बीन चीटेड ऑन थ्राइस इन माय लाइफ। माय फादर लेजिट वेंट टू अ टेंपल एंड ही लिटरली वेंट देयर विद एन इंटेंशन दैट आई लीव हर देयर। What? You see your kid dying every day. I would not stand up. I would not eat. I would be in a very bad situation. I was literally almost dying. My father. Second. If you had to choose one show, Okay. which would it be? Roadies or Splitsvilla? So, welcome back to yet another episode of Unset Feeling with Shanky. I'm your host and the man behind this podcast. And today we are back again at our favorite studio, the Taper Fox Studio in Indiranagar. If you are a business or a creator looking forward to shoot your content, well, then this is the place for you. And today we have Naira, a roadies and a Splitsvilla contestant. Well, नायरा ने स्प्लिट्सविला में आग लगाई हुई है एंड टुडे वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रोडीज अबाउट स्प्लिट्सविला अबाउट हर लव कनेक्शन टू फाइंड इट आउट कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड So hi Naira, Hi, Shanky. how are you? I am good. I'm in a very good space. Happy. Good, yeah. And you look so pretty, Naira. Thank you. I put on a lot of weight, so yeah, I mean, whenever I go fat, I start looking pretty. But you look pretty as always, as Thank on the you. show as well. I think Uh, your dressing sense has been one of the favorite dressing sense that I've seen on the show. I don't know about that. I mean, I got like mixed reviews, but then I tried my best because in roadies, I was a different person in terms of my appearance and looks. And this time I tried to experimenting with my septum, with my looks, and I also wanted people to know the feminine side of me. Yes, Roadies was all about ladna hai, jagana, it was all masculine side, but yeah. great. So Yeah. we will come to that. We will come to roadies. We will come to Splitsvilla. Oh God. And I'm sure a lot of your followers really want to know a lot of things. They Yeah. already know a lot of things. Yeah. But today, this episode is going to be about you, Naira. Finally. Okay. So starting off with that, Yeah. Naira, we all know, we all know who you are online, on television, on Instagram. But who is Naira? What's your backstory? Um, Backstory, if I go literally mean there are no words, to be honest. If I literally have to describe myself, I would say that I'm still exploring myself. Before roadies, I was a very different person. If you see in the initial episode, I was very naive, very innocent girl who didn't want any camera presence, who just wanted to be in her own life. But then gradually, I started changing. I became aggressive, but also I saw my feminine side. I mean, it's like I'm still exploring, but Great. I would say that the personality that people have seen on reality shows, that's just, I think, 40% of Naira. What? Yeah. Trust me, I mean, people think that, oh, she wear a septum, oh, she, dresses like that, oh, she talks like that, she's a badass, but I'm a baby from heart. I've been telling people that I am not that badass, I'm not that bold, I'm not that dangerous, I'm not that intimidating. I'm a sweet person, but the problem is that you need to come and speak to me and, ask about me. I meet people, and so many people have told me that I look intimidating and they feel like I'm unapproachable. So, yeah, and I feel like I'm not that bad, guys. I'm not that bad. So, I mean, coming on to who is Naira, I think Naira is someone who is emotionally very weak. Okay. Yeah, I look very strong, but I'm not that strong. I mean, I also want to cry, but then, the kind of situations I've seen in my life that has put me in a position that
you know, I cannot cry easily. The And problem why is, is that, Naira? um, in childhood, I was bullied badly, and I come from a very middle class family. So, I always had to fight for the things that I wanted when it comes to education, when it comes to opportunities, financial freedom. For everything, I had to fight so much that, not only me, my parents had also been struggling for years. So, my mom has raised me like that. She has always told me that, you're a strong girl. Very bold. You're supposed to face everything. I remember one incident that. I don't know, I was in 8th standard or something, and there was some function going on in the school. And I used to walk from school to home. And I was walking, and three guys followed me. For the first time, it happened because, you go to school with a uniform. I was dressed up nicely and all तो that. वो जो लड़के थे वो स्कूल के ही थे क्या? हाँ, हाँ, वो शायद होंगे स्कूल के यूनिफॉर्म में थे, बट दे केप्ट ऑन फॉलोइंग मी एंड आई फ्रीक्ड आउट। आई वाज़ लाइक व्हाई दे आर फॉलोइंग मी, एंड ये मेरी लाइफ में पहली बार इंसिडेंट हो रहा था कि आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल। सो आई केम रनिंग एट होम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड माय मदर आस्क्ड मी व्हाट इज़ दिस? व्हाट हैपेंड? आई टोल्ड हर दैट दिस हैपेंड। सो हर फर्स्ट रिएक्शन वाज़, you're supposed to handle it with boldly. You cannot just cry about it. You were supposed to, stop them and ask them what is your issue. You're not supposed to cry about this. So my mother has always understood that, being a woman, the life is not going to be very easy for you. So Absolutely. you're not supposed to just cry about it and take people's help. And when it comes to my father and my brother also, they always wanted me to do something by my own, do not be dependent. And there are also times that my father was very orthodox. He also wanted to, me to settle down, get married, and all that. So Okay. I mean, the way I've lived my life since childhood na, it was always like, no, Naira, you have to fight for it. Itna easily nahi नहीं milega. मिलेगा. And crying was always not an option. Matlab, I cried. I remember that I always wanted to buy 2 rupees ka toffee, and my parents did not have that extra 2 rupees Oh for me shit. to give. एंड आई रिमेंबर दैट वो 2 रुपए की टॉफी के लिए मुझे इतना झगड़ना पड़ता था कि मुझे वो चाहिए। एंड आई मीन एज अ किड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स आल्सो हैव सर्टेन थिंग्स। Absolutely. सो जब आप लाइफ में इतना फाइट करने लगते हो ना, तो रोने का ऑप्शन आपकी लाइफ से चला जाता है। और आप रोए भी, आपको लाइफ में कुछ मिला नहीं है, तो आपको पता है कि रोने से कुछ होने नहीं वाला है। एंड ऑल्सो जब मैं रोई भी हूँ ना लाइफ में, व्हेन इट कम्स टू हार्ट ब्रेक, व्हेन इट कम्स टू यू नो गेटिंग फ्रेंड्स इन लाइफ, वो रोने पे मेरा सिर्फ मजाक बना है। आई रिमेंबर दैट स्कूल में भी ऐसा एक ग्रुप हुआ करता था। आई वॉज वेरी गुड इन टू स्टडीज टिल टेंथ। सो हमेशा ना वो एक ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा इंसान टॉपर हो जाता है, तो वो सेग्रीगेट हो जाता है सेग्रीगेट हो बाकी जाता है, लोगों से, करेक्ट. क्योंकि आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो एक्स्ट्रा होमवर्क चाहिए, मुझे तो एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। तो आप बहुत एक्सक्लूडेड हो जाते हो वहां से, एंड देन आपके लिए फ्रेंड्स बनाना डिफिकल्ट होता है। तो उसमें भी ना, इफ आई वुड क्राई दैट आई वांट टू have good friends and I want to be a part of something, people would make fun of me. So I always knew that crying is never the option. And since then I've been carrying a shield that, oh, Naira is so Oh strong, you my cannot god. harm her. You cannot, trust me. But अंदर से वो कितना डैमेज हुआ होगा सिर्फ मुझे पता है। एंड आई थिंक वही रीजन है नायरा. आई थिंक पब्लिक को जो अभी दिखता है, दे थिंक कि नायरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही बोल्ड है. एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज यू आर शोइंग दैट साइड ऑफ योर. या बट या आज तक मे बी असली नायरा को कोई अच्छे से जाना नहीं है. यार, बहुत डर लगता है मुझे वो साइड बाहर निकालने में, बिकॉज़ जब मैं पहले शो में रोडीज़ में जब थोड़ी-सी वल्नरेबल हो गई थी, तब पता नहीं था कि लोग आपके इमोशंस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, या वो टीवी पे कैसा लगेगा। आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट इट। सो आई शोड माय वल्नरेबल साइड, एंड पूरी दुनिया में वो मज़ाक बन गया उस चीज़ का, दैट पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ओह, शी इज़ डूइंग इट फॉर फेम, और ये सब फालतू नाटक है। बट इट वाज़ सो जेन्युइन, इट वाज़ सो फ्रॉम माय हार्ट, एंड आई सॉ माय सेल्फ बीइंग दैट वल्नरेबल ऑन टीवी, एंड आई रियलाइज्ड कि अब तो बिल्कुल भी नहीं होना। Oh जो my थोड़ा बहुत भी मैंने डोर ओपन किया था और सोचा था कि यार हो जाते हैं, अब तो ऐसा लगा नहीं यार, अब तो थोड़ा-सा लोग पहचानने लगे ना, तो अब तो वो भी ऑप्शन वो चला भी गया। ऑप्शन चला. But I sometimes I really crave that one day I really want somebody to just hug me and say that, Naira, you can cry. You know, I feel like crying. I want to cry, but then I do not feel that safe space. I do not feel that, if I'll cry, somebody will understand, or somebody will just say that, okay, cry. I'm not saying anything. I don't want to listen all these advices. I don't want to listen to people saying, ki, oh, you're so strong. Even when I've tried crying, na, the first thing that people say is, oh, Naira, you're so strong. You're not supposed to cry. जब Splitsvilla में भी
आई गॉट एन इंजरी, मेरे पैर में इतना गंदा लगा था कि वो इतना इरिटेटिंग था। हर दिन मैं उठती थी, मेरा पैर डबल साइज में सूजा हुआ होता था एंड डॉक्टर बोलते थे तकिए के ऊपर पैर रख के सोने के लिए। एंड आई वुड वेक अप, आई वुड आस्क मेडिसिन। टिल 10-15 डेज ये सेम प्रोसीजर रहा है। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग इन पेन फ्रॉम इनसाइड, एंड द मोमेंट आई वुड टेल समवन ना कि माय लेग इज पेनिंग, सो पीपल वुड से कि यार तू तो शेरनी है, तू तो स्ट्रांग है, तेरे को थोड़ी ऐसा फील होता है। एंड आई वाज लाइक, Oh my God. no, bro, I'm not strong. I am trying to carry a shield of being strong, but I am equally vulnerable. And I also want someone to take care of me, pamper me, love me. But then, yeah, I mean, that's what. So, coming on to who Naira is exactly like other girls. Exactly like other Beautiful, girls beautiful. who wants to be loved, who wants to be taken care of, who wants to live a good life. But situations had pushed her or forced her to become strong. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर नायरा की जितने भी एपिसोड देखे हैं, रोडीज से लेके स्प्लिट्स विला से लेके, यू हैव ऑलवेज गिवन योर 100%, कि यू वांट कि एक लड़का कोई खड़ा रहे वहाँ पे, हु इज देयर विथ यू। आई थिंक रोडीज में हुआ, जो तुम चाहती थी वो मिला नहीं उसकी तरफ से, स्प्लिट्स विला में भी जो तुम चाहती थी वो मिला नहीं। तो आई थिंक वो सब मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे यू स्टार्ट बिकमिंग मोर स्ट्रांग। यू आर लाइक कि मैं क्यों करूँ, Yeah. मैं क्यों करूँ, मैं इतना कुछ अपनी तरफ से दे रही हूँ पर उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्यों करूँ? यार पता है कैसा होता है कि लोगों को ना एक गलत फहमी है मुझे लेके, दैट आई नीड अ मैन इन लाइफ और आई नीड दैट सपोर्ट इन माय लाइफ। आई थिंक वो सबको चाहिए होता है, ऐसा तो सबको नहीं है चाहिए कि होगा। सिर्फ मैं इकलौती बोल रही हूँ। बट मेरे केस में क्या होता है, वो बहुत आउट लाउड हो जाता है बिकॉज मैं थक चुकी हूँ अकेले लड़ लड़ के लाइफ में। आई रिमेंबर सिंस द एज ऑफ 13 आई बीन वर्किंग एंड वर्किंग, आई बीन ट्रैवलिंग अलोन, आई बीन टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन। So once in a while you feel like that, why not to have someone? But that's not the only thing that I want in life. वो एब्सोल्युटली। क्या होता है कि जब मैं रोडीज में गई तो it happened all of a sudden. I was already into depression when I went there. I did not go with my will. मतलब रोडीज स्टार्ट होने से पहले यू वर ऑलरेडी इन डिप्रेशन, Yeah, yeah, I was बट moving out, so पर पब्लिक को ये कोई आइडिया नहीं था। no. ओह माय गॉड! I was already moving out from Bombay. I was leaving my career. जो 6 साल मैंने बॉम्बे में एक करियर बनाया अपना इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग, एक्टिंग, बिहाइंड द कैमरा, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, एंड आई वाज बैंकरप्ट। लाइक लिटरली मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। लास्ट आई थिंक 15 से 20 हज़ार मेरे पास बचा था, एंड आई हैड टू फोर्सफुली लीव बॉम्बे एंड कम देयर फॉर माई फैमिली टू बी देयर सपोर्ट एंड ऑल दैट। सो वो मेरे लिए बहुत मेजर फेस चल रहा था जिसमें मैं नहीं कॉप अप कर पा रही थी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। एंड शिट! कि मूविंग अ सिटी इज़ नॉट एन ईज़ी इट इज़ नॉट एन ईज़ी डिसीजन। डिसीजन। बॉम्बे पहुँचना लोगों के लिए सपना होता है, और इतना करियर बनाने के बाद छोड़ के जाना, और ऐसी जगह पे जो जगह मुझे नहीं पसंद थी इतनी, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी तक भी बैंगलोर को उतना वेलकम नहीं नहीं कर कर पाई पाए। हूँ बिकॉज़ ऑफ सो मेनी थिंग्स। इतना मुझे वेलकमिंग नहीं लगा, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली यहाँ पे। तो जब मैं मूव इन भी हो रही थी बैंगलोर में, तो मेरे लिए ऑलरेडी एक फेज़ चल रहा था कि आई वाज़ फाइटिंग with myself that Naira, you're a loser, you're losing everything, and you have no money. And then उसके बाद जब रोडीज में सिलेक्शन भी हुआ, तो वहां तक जाने का ट्रैवल एक्सपेंस, वो कपड़े अरेंज कहाँ पे था करना। ये ऑडिशन? बेसिकली मैंने पुणे में ऑडिशन दिया था। तो पुणे में ऑडिशन जाने के लिए जो भी बसेस लगती, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे फ्लाइट में जाने के, मैं बस ओह करके जैसे-तैसे करके शिट! पहुँची थी। तो वो बस का फेयर भी मुझे उस वक़्त इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था कि जो थोड़ा बहुत सेविंग्स किया हुआ था, 10-15 हज़ार थे बचे हुए थे, थोड़ा बहुत एक आध शूट करके कुछ आया हुआ था, किसी के पास कुछ पैसे बचे हुए थे मेरे, वो सब इकट्ठा करके मैंने जैसे-तैसे करके कोशिश की थी। और फिर उसके बाद जब वो कपड़ों की लिस्ट आई, वो 80 से 100 गारमेंट्स, करेक्ट। और थोड़ा बहुत डिज़ाइनर से बात की कि थोड़ा स्पॉन्सर्ड कपड़े मिल जाए, बट तुम्हें खुद से लगाना तो पड़ता ही है। फॉर श्योर, ऐसा तो है नहीं एकदम। सब फ्री में मिल जाता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस ही ये था कि मेरा रोडीज में सिलेक्शन हो गया, मैं पैसे कहाँ से लाऊं ओह इतने कि माय मैं गॉड! इतना सब कुछ अरेंज कर पाऊँ। बट देन माय फ्रेंड्स केप्ट ऑन फोर्सिंग मी कि यू शुड गो टू रोडीज, यू शुड गो टू रोडीज। सो उस वल्नरेबल स्टेज में मेरा रोडीज में जाना वाज आई थिंक अ बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड, कि आई वाज नॉट द मतलब मेरा वो बेस्ट था ही नहीं।
मैं ऑलरेडी बहुत लो थी एंड जब ऐसा होता है ना कि जब आप लाइफ के उस लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हो एंड देन वन पर्सन कम इन योर लाइफ एंड गिव यू दैट लिटिल केयरिंग एंड ऑल दैट हम्म। थिंग, तो यू फील लाइक कि आप उसमें खुशी ढूंढने लगते खुशी हो। ढूँढने लग अब जाती है। ये कैलकुलेटिव नहीं होते उस वक्त कि इसका कुछ फ्यूचर है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए ठीक है कि नहीं। यू जस्ट वांट टू बी इन दैट मोमेंट दैट this is the time that I want to enjoy ki out of 100 bad things this one thing is going right in your life, हुँ, let's just find happiness in that। आई नो। and that's what happened in roadies। और वो लोग समझ नहीं पाए, लोगों के लिए था कि अरे यार इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाता है, इतनी जल्दी अटैचमेंट कैसे हो जाता है एंड ऑल दैट शिट। इट वाज नेवर लव, इट वाज नेवर दैट ये जो भी वर्ड जो आजकल की जनरेशन यूज करती है, इट वाज दैट अ मोमेंट दैट आई वाज वेरी लो, आई वाज गोइंग थ्रू शिट एंड आई डोंट वांट टू नेम इट, आई नो। बट द पर्सन केम इन लाइफ, इट फेल लाइक अ होप दैट फॉर द टाइमिंग इट्स गोइंग गुड। मैंने कुछ कैलकुलेटिव डिसीजंस नहीं लिए एब्सोल्युटली। कि शो के बाद कुछ फ्यूचर है कि नहीं या क्या होने वाला है। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड दैट्स व्हाई जब वो इंसान जिस तरीके से बिहेव कर रहा था ना, वो चीजें मुझे अफेक्ट कर रही थी बिकॉज वो एक इकलौती सही चीज़ चल रही थी, उसमें भी जब वो इतना हिंड्रेंस होने लगा ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ब्रो क्या करना है। और आई वाज़ नॉट फोकस्ड ऑन द गेम बिकॉज़ एज़ आई सेड आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड गोइंग फॉर दिस शो। आई वाज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इनटू एनीथिंग। मुझे मतलब वोट आउट के लिए भी ना मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या किसको वोट करना है? आउट करना है। मेरी गैंग में बोलते थे इसको करना है, मैं बोल देती थी हाँ, इसको कर लेते हैं। ओह माय और गॉड! फिर वो स्ट्रगल की एक गैंग है और एक इंसान दैट आई एम इन्वॉल्वड विथ, वो उसके बीच का वो वॉर चल रहा है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था शैंकी कि रोडीज़ में करना क्या है। आई वाज़ लॉस्ट, आई वाज़ लिटरली लॉस्ट एंड दिस टू वाज़ थ्रूआउट द होल या सीज़न। थ्रू आउट। एंड ये एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था दैट मैं फैट बर्नर लेके गई थी वहां पे बिकॉज आई वाज लाइक कि फैट वेट बढ़ा तो स्क्रीन पे खराब नहीं दिखना चाहिए। तो फैट बर्निंग पिल्स में क्या होता है, आपकी एंजाइटी पीक पे चली जाती है। तो ओह माय अब वहां गॉड! पे क्या था, मेरा फैट गेन हो रहा था एंड मैंने वो फैट बर्निंग पिल्स ले ली बीच में, टास्क वास्क के बीच में। तो मेरा एंजाइटी और पीक पे हो गया। तो जो इमोशंस मैं फील कर रही थी ना, वो वो अब और डबल एम्पल एक्स अप हो हो गए। गए। तो हाँ, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे और बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यही सब चीज़ें ना, जब इतने खराब मेंटल स्टेट में होते हो ना, तो आपके साथ कोई भी इंसान होगा ना, उसको भी हैम्पर करता है। तो कहीं न कहीं वो उस इंसान को भी हैम्पर करने लगा एंड एक ऐसा पॉइंट भी आया था जब उसने बोला कि तेरा ट्रॉमा है, मैं क्यों झेलूँ? आई नो। ही वाज़ राइट इन हिज़ ओन वे, बट मेरे लिए वो और लोएस्ट पॉइंट था कि मतलब मैं ऑलरेडी पूरी गैंग से फाइट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही इसके हूँ लिए एंड एंड वो भी इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आई थिंक मेरा पूरा जर्नी बर्बाद गया रोडीज़ में। I could have done really good on the show in terms of कीपिंग yeah, इन माइंड कि जो नायरा अभी स्प्लिट्सविला में है, नायरा आई एम नॉट इवन किडिंग जो नायरा अभी स्प्लिट्सविला में है, वो सेम नायरा अगर रोडीज़ में होती I ना, swear। पक्का जीत के आई निकलती। स्वेयर बिकॉज़ पक्का। स्प्लिट्स में मैं ना बहुत ईज़ में थी, मतलब कोई इतना मेंटल स्ट्रेस था नहीं, इमोशनल बैगेज नहीं था, एकदम चिल होके गई थी और एक्चुअली में मैं जीतने ही गई थी। मतलब इस बार मेरा पूरा फ़ोकस था कि किसी से उसमें नहीं पड़ना है, एकदम जर्नी जीनी है, शो जीतना है बिकॉज़ बहुत रिग्रेट था रोडीज़ का कि मैं रोडीज़ में उतना नहीं कर पाई। लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज़ ऑफ द जिम बॉडी आई हैड, तो राइट, उनको लगा था आगे सर्वाइवल होगा, बट इतनी जल्दी निकल गई ना, तो मुझे था कि यार इस बार जो मैं रोडीज में छोड़ के गई हूँ ना, वो मुझे स्प्लिट्स में करना है। स्प्लिट्सविला में करना है। एंड पता है मेरी लाइफ ना शैंकी डेस्टिनी के बेस्ड पे ही है। मतलब स्प्लिट्स भी जब होने वाला था तो मैंने ऑडिशन दिया था दिसंबर के आसपास एंड सबको कॉल्स आ गए थे, मुझे ही कॉल नहीं आया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मुझे कॉल नहीं आया, बट देन आई अंडरस्टूड कि मे बी मेरा स्क्रीन प्रेजेंस उतना नहीं नहीं था था। तो नहीं लिया होगा। एंड आई रिमेम्बर जब शो की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी उसके 4 दिन पहले मुझे कॉल आया कि स्प्लिट्स के लिए लेट्स डू अ कॉल। तो आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब अब तक तो सबको कॉल आ चुका है। मतलब मैं कितने महीने पहले उन लोग वो कर देते दिसंबर हैं जा डिसाइड? चुका था, जनवरी जा चुका था, मुझे आई थिंक फरवरी में कॉल आया तो था। उन बाकी सब कंटेस्टेंट को दिसंबर में कॉल आ गया था। हाँ, हाँ, दिसंबर में मतलब उनके ऑडिशंस हुए थे, हाँ, तो ऑडिशन के बाद उनको मेन पर्सनल कॉल आ गया था, पर्सनल आके उनका इंटरव्यू तो मतलब वगैरह दिसंबर होना में उन था। लोग रेडी थे स्प्लिट्स में मतलब जाने के लिए। ऑनेस्टली दिसंबर में रेडी तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसा था कि दिसंबर में ऑफलाइन कास्टिंग चल रही थी और उसके बाद उनको कॉल्स आ गए थे कि आप इन पर्सन आ जाओ ऑफिस वगैरह में ओके, बात करने के लिए। जो ओके। दूसरी सिटीज़ में भी थे, उनको स्पेसिफिकली मुंबई के लिए कॉल आ चुका था।
फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया था, बट एक स्टेप उनको आगे मिल चुका था। गॉट इट। मेरा कोई स्टेप नहीं था, वो 0 स्टेप था जो ओह माय ऑनलाइन गॉड! ऑडिशन मैंने दिया, दैट्स इट। तो मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी थी, और मैंने मतलब छोड़ते था, आई वाज़ फोकसिंग ऑन माय लाइफ, एंड आई वाज़ प्लानिंग टू ओपन माय सैलून एट दैट टाइम, सो आई आई वाज़ नो। फोकसिंग ऑन बिज़नेस, मेरे को कुछ पता नहीं। एंड 4 दिन पहले जब मुझे कॉल आता है, और आई वाज़ हैविंग हाई फीवर, मेरे को याद है बहुत मेरी हालत खराब थी, एंड मैंने बोला कि यार मैं कॉल कैसे करूँगी, एंड मुझे बेस्ट देना था कि पता नहीं कैसे किस्मत ने साथ दिया है कि ये कॉल आया है। तो मैं बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ ये कॉल ना कैंसल हो जाए, कल-परसों हो जाए कॉल। बट वो होप भी नहीं था, क्योंकि जर्नी स्टार्ट होने वाली थी 3-4 दिन में। तो शूटिंग डेट्स भी इनके पास में आ चुकी थी। तो बस मैंने ये बोला कि कुछ भी ऐसा हो कि बस मैं आज ना हो मेरे साथ, क्योंकि मैं आज उस हालत में मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ। फिर भी मैं तैयार हुई, पूरा रेडी-वेडी हुई, शूट से आई थक-हार के, मेरे पूरे चेहरे पे फ़ीवर दिख रहा था। और जैसे ही आई थिंक 8 बजे का हमारा कॉल होना था, और जैसे ही मैं रेडी हुई, मैंने 8 बजे टेक्स्ट किया, आई एम ऑल रेडी, द मैसेज कम्स दैट द कॉल इज़ कैंसल्ड एंड वी वांट यू इन पर्सन। तो मुझे व्हाट? लगा कि ये क्या हो रहा है? आई स्वेयर ऑन माय मदर दिस हैपेंड। सो मैं खुश भी हुई, और एट द सेम टाइम ये भी लगा कि यार इन पर्सन में जा रही हूँ, पता नहीं नहीं हुआ। और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा से रही है, मतलब मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं रहा हो कि मैं सोचूं कि नहीं नहीं यार फ्लाइट टिकट कर ली चलेगा, तो एक चलेगा। और स्ट्रेस की यार ये खर्चा होगा, और ये वर्द नहीं हुआ तो ये पैसे भी वेस्ट में जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, यू श्योर कि मेरे को आना चाहिए? तो दे सेड कि स्प्लिट्स के अलावा दूसरे शो की भी कास्टिंग चल रही है, अगर स्प्लिट्स में नहीं हुआ तो किसी में तो हो ही तो जाएगा। कहाँ पे बुला रहे थे वो आपको? मुंबई। मुंबई तो बुला रहे थे। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं फ्लाइट वगैरह करके मैं पहुंची मुंबई, मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन मेरा बहुत अमेजिंग गया, मतलब वो 2 दिन के बाद का था, आई थिंक नेक्स्ट डे का था, आई कांट रिकॉल एग्जैक्ट, मुझे डेज याद नहीं है। बट मतलब मैं जिस दिन पहुंची उसके आई थिंक 3 दिन बाद हमें निकलना था, इतना कुछ पास में डेट्स थी। तो मैं पहुंची और मैंने ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन बहुत बढ़िया गया, और उसी दिन ही मैं फिर दिग्विजय से भी मिली, गॉट जब इट। हमारी एक्चुअली प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई। तो मैं उसको बार-बार यही बोल रही थी कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा स्प्लिट्स में नहीं हुआ है, मेरा दूसरे शो में हुआ है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। और ऑडिशन में लेकिन क्वेश्चन सारे स्प्लिट्स के पूछे गए थे, मोस्टली अबाउट शिवित एंड ऑल दैट। तो फिर उसी में रात में मेरी बात होती है कि हमको लग रहा है कि तुम्हारा हो तो गया है, किसी एक शो में तो हो गया है। एंड देन सेकंड डे कॉल आता है कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर अनदर शो। एंड उसी दिन शाम को मेरे को मतलब पता चलता है कि मेरे दादू की तबीयत बहुत खराब है, एंड ही इज ऑन कंप्लीट डेथ बेड। ही वाज़ इन बैंगलोर, भोपाल। भोपाल। ही वॉज ऑन डेथ बेड, कभी भी ही कैन गो। एंड मेरे लिए एक और डिलेमा कि मेरी लाइफ में मुझे इजी चीजें क्यों नहीं मिलती है। मैं खुश हूँ इतने में कि मुझे कुछ तो मिला है, उतने में मेरे को एक न्यूज मिलती है कि मेरे मतलब डॉक्टर ने लिटरली बोल दिया था 5 दिन से ज्यादा वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो अब ऑफ कोर्स गिल्ट कि मैं फैमिली को ऐसे सिचुएशन में छोड़ के कैसे जाऊं। बट टच वुड यू नो शैंकी, एक चीज मेरी लाइफ में हमेशा अच्छी रही है, वो है मेरी फैमिली। मेरे को चाहे दुनिया ने कैसे भी ट्रीट किया हो, लोग कैसे भी मिलो, मेरी फैमिली मेरी पिलर रही है। My mother literally said that don't skip this opportunity, you go, we'll take care of everything. वॉव! एंड आप सोचो मेरा सैलून स्टार्ट होने के इनिशियल स्टेज में है, आई एम द पर्सन हु इज सपोज टू टेक द डिसीजन फॉर इंटीरियर कलरिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज माई ब्रदर वॉज ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन स्टूडियो, सो देयर वाज somebody needed to help him. एंड उस सिचुएशन में माई ब्रदर said that no, you go, we'll take care of everything. So he was ready to take care of the nail salon, tattoo studio, and the new salon that we were So opening, he took the the entire responsibility of responsibility. everything. Yeah. I Hats was off. like, bro, I mean, मेरे लिए वो इतना ओवरवेलमिंग था दैट भगवान ने मुझे एक ही चीज अच्छी दी है, वो है फैमिली। एंड विद दैट सपोर्ट आई वेंट अहेड, एंड थोड़ा सा डिसहार्टन थी कि दूसरा शो है, बट अंदर से ना लग तो रहा था कि ये स्प्लिट्स हो सकता है, बिकॉज़ हमने बहुत पूछा लोगों से, तो वो स्प्लिट्स वाले भी उदयपुर जा रहे थे, हम भी उदयपुर जा रहे थे। बट कन्फर्मेशन किसी चीज़ का नहीं आ रहा था, बिकॉज़ हमको मतलब बोला ही नहीं गया स्प्लिट्स विला है। बट अंदर से ना एक हिंट लग रहा था कि मे ये बी हो इट इज़। सकता है। तो दिग्विजय और हम बात भी कर रहे थे, मैं दिग्विजय को बोल रही थी कि नहीं पॉसिबल है यार, इतना मतलब कैसे, ये 2 अलग-अलग शो है। दिग्विजय वाज़ लाइक नहीं सेम शो है, तू बेट लगा ले। मैंने कहा मैं बेट नहीं लगा रही हूँ, बट ये है आई थिंक डिफरेंट शो। तो हमारी ऐसी बात हुई, और जब हम पहुँचे तो मेरी ही कैब में टीकीला थी,
और टेकीला ने मुझे बताया कि उसको स्प्लिट्सविला के लिए बुलाया है। मैं थी कि मुझे तो डेटिंग शो बोला गया है, तो फिर मेरी ना दिमाग की घंटी बजना स्टार्ट हुई कि नायरा ये कुछ तो सीन गड़बड़ है यहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि मे बी कुछ क्रॉसओवर जैसा हो सकता है इन दोनों के अच्छा, बीच आइडिया में। आ गया था थोड़ा-सा। हाँ, कि कुछ तो कनेक्टेड है लेकिन ये स्प्लिट्स नहीं है नहीं, एंड क्योंकि ये भी पहली बार हो रहा था ऐसा कुछ। ये क्रॉसओवर एग्ज़ैक्टली, शो पहले कभी नहीं हुआ, ये फॉरेन में बहुत बार हुए हुए हैं, एग्ज़ैक्टली पर इंडिया में मतलब पहला कभी नहीं हुआ है। पहले कभी नहीं हुआ है, तो दिमाग में नहीं था बट मेरे को था कि क्रॉसओवर हो सकता है। बट जब फ़ोन लिया गया हमारा और जब बोला कि स्प्लिट्सविला है, तो इतनी खुशी हुई ना उस वक़्त मेरे को लगा कि मतलब ये मिरेकल था मेरे लिए आई ऑनेस्टली नो। क्योंकि अचानक से एंड मोमेंट पे कॉल आना और फिर सिचुएशन इतनी वर्स होने के बाद भी दोबारा मौका मिलना अंदर जाने का एंड स्प्लिट्स निकला। बट देन आई वाज़ लाइक कि बाहर तो सबको यही पता है मैं दूसरा शो करके आ रही हूँ, बाहर तो किसी को पता ही नहीं मैं ओह! स्प्लिट्स है कर ना? रही हूँ। एग्ज़ैक्टली। करेक्ट। सो आई वाज़ थ्रिल्ड कि जब मैं बाहर जाऊँगी, बताऊँगी कि मैं स्प्लिट्सविला में हूँ और जितने में हम स्प्लिट्सविला एन्जॉय करते, इतने में हमको पता चलता है हम एक्साइल में एक्साइल हैं। में है। तो मतलब बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है स्प्लिट्सविला की। बट या आई मीन be it roadies, be it splits, or be it my upcoming project, everything has been a part of destiny. वाओ! वाओ! Yeah. एंड आई थिंक व्हाट आई पर्सनली बिलीव नायरा, Yeah. कि डेस्टिनी भी ना किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता है। True. डेस्टिनी भी उसको मिलता है जो वर्थ इट है। यार वर्थ इट से मैं एक चीज़ शेयर करूँगी, ये मैंने रोडीज़ के ऑडिशन में भी करी थी बट वो एडिट हो गई है। नॉट मेनी पीपल नो दैट माय मदर सेज दैट आई एम अ गॉड सेव्ड किड। सो व्हेन आई वाज बोर्न आई हैड अ टीबी एंड देयर वर सेवरल डिसीजेस दैट वर हैपनिंग विद मी बट माय पेरेंट्स कुड नॉट फिगर आउट बिकॉज दे वर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल विलेज। सो for 5 6 years they kept on struggling, they kept on going from one doctor to another, and they spent all of the money they had. So my father got really like frustrated and he was like, I don't have money and I'm not even able to figure out कि इसके साथ problem क्या हो रही है, and I have another kid also. So it's a filmy thing, but my father legit went to a temple and he literally went there with an intention that I'll leave her there. व्हाट? Yeah. uh, it's a very, because my father was so, I mean, you know, you see your kid dying every day. I would not stand up, I would not eat, I would be in a very bad situation. I was literally almost dying. My father, a second. You want some water? No, no, it's okay. My father loved me so much. I am still like his favorite, and with that heavy heart, he went there and वो उनकी ज़िद थी, उनको ये था कि ही इज़ वेरी रिलीजियस, ही वाज़ लाइक कि भगवान नहीं मान रहा ना ऐसे, तो मैं अब ये करता हूँ, मैं इसको छोड़ के आता हूँ, ज़िद में तो भगवान इसको ठीक कर ही देंगे। वैसे विद दैट थॉट ही वेंट देयर एंड उन्होंने मुझे वहाँ लेटाया था। जो थोड़ा बहुत उनको याद है, भाई आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी फिल्मी स्टोरी दैट उन्होंने मुझे वहाँ लेटाया था एंड ही सेड दैट टू काली माता जो वहाँ पे किला है, दैट या तो उसको ठीक कर दो या तो मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास अब पैसे ही नहीं बचे हैं इसका इलाज इलाज कराने के करने लिए एंड दूसरा बच्चा भी है। तो माई डैड टोल्ड मी वहाँ पे ना नगाड़े बजते हैं बहुत जोर से, ओके। एंड जब नगाड़े बजे ना तो आई स्टार्टेड डांसिंग। व्हाट? Yeah, and I don't know if it's their hallucination or if it's actually happened, but that's the kind of story my parents have told me, that I started dancing and my dad was crying in tears. He was like, it's a miracle that, and he says that अगर मैं जिद नहीं करता ना तो वो ठीक ही नहीं कर रहे थे हुँ। देखो। तो मेरे को ये जिद रखनी पड़ी कि नहीं करोगे ना तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एंड दैट्स व्हेन 80% ऑफ माय डिसीज वेंट अवे, माय टीबी वेंट अवे फॉर वाह! सम रीजन, एंड मैं तब से थोड़ा ठीक रहने लगी एंड दैट्स व्हाई माय मॉम सेड दैट गॉड हैज सेव्ड मी एंड हैज सेव्ड मी फॉर सम रीजन। वो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ देने के लिए नहीं नहीं, बचाया है। आई एम मेंट टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ। एंड आई थिंक दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट यू आर डूइंग नायरा अभी। Yeah, I mean, can say that. I won't say कि I have achieved something big or I'm doing something big, आई गेट इट। but some power had been there with me for some reason. Like Roadies में भी I'm telling you, it's a very weird story. Roadies में जब मेरा दूसरा नाम था, मैंने पहले उससे ऑडिशन दिया था, सेम सीजन। क्या नाम था वो बता सकते हैं? भावना आहूजा मेरा नाम था ठीक है। और वो नाम से मैंने दिया था क्योंकि मैं बॉम्बे में थी, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया ऑनलाइन एंड भावना आहूजा नाम से दिया। सेम पर्सनैलिटी, सेम बाल किए हुए थे, सेप्टम पहना हुआ था, सेम जो चीज़ें मेरी है वही मैंने बताई थी और उससे सिलेक्शन नहीं हुआ।
एंड आई केम टू बैंगलोर एंड आई थॉट दैट अब जब लाइफ चेंज ही हो रही है तो मैं नाम चेंज कर लेती हूँ बिकॉज आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. तो वाओ! आई चेंज माई नेम. Like आई officially you change your name. ऑफिशियली हाँ, मतलब पेपर्स पे अभी थोड़ा बचा हुआ है बट ऐसे कर दिया था सोशल मीडिया वगैरह पे. मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने पहले भी बोला हुआ ही था कि इफ यू विल चेंज योर नेम सब चीजें ठीक होंगी, बट होता है ना सही टाइम का इंतजार था. तो तब तक मुझे कॉलिंग नहीं आया था. मुझे बैंगलोर पहुंचते ही कॉलिंग आया कि अब मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, तो हम नाम चेंज कर नाम लेते, change. लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ. एंड मैंने नायरा नाम रखा. उस नायरा नाम से जब मैं रोडीज के ऑडिशन देने गई मेरा सिलेक्शन हो गया. इट्स सो वाह! वियर्ड. नायरा का मतलब क्या होता है? नायरा इज गॉड्स गिफ्ट ओह! and luck. So I am a God gift for my parents, and that's how I was looking for names for myself. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या नाम रखना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वियर्ड फीलिंग जब आप खुद का नाम रखते हो. तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी एंड नायरा नाम बहुत कम जगह यूज हुआ था और मैं काफी चीजों के मतलब देख रही थी. एंड जब मैंने इसका मीनिंग देखा ना, आई वाज लाइक दिस इज माई This is नेम. your name. बट स्टिल मैंने 3 नाम चूज़ कर रखे थे, मुझे बाकी 2 तो ऑप्शन याद नहीं है। वो तीनों मैंने रखे थे, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर को दिए थे कि तीनों नाम में से एक आप मुझे बताओ कि क्या सूट करेगा। तो एक आई थिंक ए से कुछ नाम था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट इट वाज़ वेरी कूल नेम और मुझे वो चाहिए था। बट माय एस्ट्रोलॉजर Then पिक्ड दिस वन। Naira. उन्होंने यही पिक किया मेरे लिए. एंड आप अब एक चीज सोचो कि आप वही इंसान, सेम पर्सनालिटी, उसी साल में सेम ऑडिशन दे रहा है, लेकिन उस नाम से नहीं, वो इस नाम से हो गया. Oh my. और मतलब बहुत वियर्ड बात थी कि मैं नहीं देना चाहती थी ऑडिशन. मेरे को कोई फोर्स ना पुश कर रही थी बार 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 बार. और मेरी बस भी छूटने वाली थी. अचानक से बारिश होती है, वो बस लेट हो जाती है. वो बस वाले ने मुझे लिटरली बोल दिया था कि आपको मैं छोड़ दूंगा अगर आप 5 मिनट पहले नहीं आए, तो मैं आपके लिए वेट नहीं कर सकता बैंगलोर हूँ. से पुणे जाने के यस. लिए. और पता नहीं कहाँ से बारिश आती है कि वो बस डिले हो गई आउट ऑफ नो रीजन. कोई बारिश का सीजन नहीं था. फरवरी में कोई बारिश का सीजन नहीं Oh था. my अचानक से बारिश हो गई. God. एंड मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है नायरा, क्या हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, फ्रॉम वन GD1 टू GD2 टू PI, मेरे को नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा. मैं सिर्फ, मतलब मैं केयरलेस वाले उसमें थी कि होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक. और मतलब मेरे साथ में जो ग्रुप में भी डले हुए थे, PI में भी, मतलब आशिका थी, शी वाज स्ट्रांग. तो मुझे कहीं से कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरा होगा. Oh पता नहीं my God. क्या डेस्टिनी ने प्लान किया कि वो मुझे रोडीज तक लेके गई. So after ये दोनों शो के बाद, like you are, the या show is still going on या Splitsvilla. या So Naira, I really want to know from your point कि सबको पता है, सबको लगता है कि अच्छा ये फेम बहुत अच्छा है, नायरा तो बहुत खुश होगी, बट आई रियली वांट टू नो एक बच्चा जिसका ड्रीम था टू डू बिग इन लाइफ. या ओके, नाउ यू हैव टोल्ड अस कि थिंग्स दैट हैपेंड विथ यू व्हेन यू वर अ किड. या ठीक है, वहां से लेकर व्हेन यू थिंक अबाउट इट राइट नाउ और अभी जहां पहुंचे हो आप, कैसा लगता है? अम, यार, मैं ना, मेरा एक्चुअली ज़ोडिएक का प्रॉब्लम है थोड़ा. आई एम अ वर्गो. सो हमको ना हर चीज़ से सैटिस्फैक्शन नहीं होता है. व्हाटएवर वी डू वी नीड मोर ऑफ इट. सो अभी तक भी मैंने जो किया है ना, मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि मेरी डायरेक्शंस बहुत चेंज हो रही है लाइफ में. जैसे जब मैं छोटी थी तो मुझे सिविल इंजीनियर बनना था, वो पाथ चेंज हो गया. फिर मुझे मॉडलिंग करनी थी, वो चेंज हो गया. फिर मैं ज़बरदस्ती एक्टिंग में घुसी, मैंने कहा चलो थोड़ा एक्टिंग कर लेंगे, वो चेंज होके बिहाइंड द कैमरा चली गई. फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टर बनूँगी, डायरेक्टर से मैं आर्ट डायरेक्टर में चली गई. फिर मैंने सोचा चलो बड़ी आर्ट डायरेक्टर बनूँगी, तो वो छोड़ के रियलिटी शोज़ में रियलिटी आ शोज गई. में. तो एक होता है ना कि आप एक गोल देखते हो लाइफ में कि आपको ये करना है, और आपको वो जब अचीव हो जाता है, आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाता है. मेरे गोल्स ही चेंज होते जा रहे हैं. और फॉर सम रीज़न ये चूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, डेस्टिनी मेरे को डेस्टिनी. यहाँ से वहाँ लेके जा रही है. लाइक अभी, मतलब मैंने सोचा था बॉम्बे छोड़ने के बाद मैं दोबारा बॉम्बे कभी नहीं नहीं जाऊंगी. जाऊँगी. अचानक से नाउ आई एम मूविंग बैक टू बॉम्बे. सो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है शैंकी. मेरी लाइफ इतनी एडवेंचरस है ना, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारी लाइफ 1 साल से सेम उस पे चल रही है. तेरी 1 साल में 6 गैप पता आ नहीं क्या हो रहा है. गए. और अभी मतलब जो मेरा नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है, वो भी आउट ऑफ नोवेयर. मतलब 2 दिन पहले मुझे कॉल आते हैं, हाँ यू आर डन एंड वी आर लीविंग. सो मुझे खुद नहीं पता कि क्या आ रहा है. एंड आई एम थ्रिल्ड कि आने वाले टाइम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बड़ा आ सकता है. तो ऑनेस्टली अच्छा तो लगता है कि एक मैंने वो लाइफ देखी है कि जहाँ 2 रुपए नहीं होते थे वो टॉफी खरीदने के. मैं अपनी पहली फ्लाइट में जब बैठी थी तो किसी और ने शूट में स्पॉन्सर्ड थी. टू डूइंग एवरीथिंग बाय माय ओन.
being a person who was struggling into modeling, struggling with starving की उस modeling में मुझे वो पतला दिखना है, to becoming muscular women and doing my very first TV commercial as a muscular woman, being comfortable in my body type, breaking all the stereotypes. I think खुशी तो है यार, खुशी तो है। कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में, थोड़ा बहुत ही सही उखाड़ा तो है। फेम की बात जहाँ आती है, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि फेम के ना डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी है। इफ एडवांटेजेस क्या है इसमें? एडवांटेजेस ये है कि थोड़ा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। सो राइट। आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको फैन फॉलोइंग है, जिसको ये पसंद है कि लोग मेरे पीछे पागल हो। आई डोंट लाइक दैट। आई एम दैट पर्सन कि मुझे मेरी स्पेस में मेरी रहना स्पेस बहुत में। पसंद है। मुझे नहीं पसंद है कि लोग एकदम मेरी स्पेस में आए। बट मुझे ना वो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, यू कैन गिव योर पेरेंट्स अ बेटर लाइफ। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज दैट फेम गिव्स फेम यू। गिव्स एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज दैट फेम गिव्स? Disadvantage is that there is no personal life anymore. ओके। आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे, वो बहुत छोटी सी दुनिया थी, उसमें रो रहे जाग रहे सब कर रहे, किसी को कुछ बॉदर नहीं हो रहा। आपकी सोशल लाइफ छोटी सी है एंड बहुत पर्सनल है एंड बहुत प्यारी सी लाइफ है, जिसमें कोई आपको नेगेटिव फील नहीं करा सकता, आपको इनसिक्योर फील नहीं करा सकता। राइट। अब ऐसा हो गया है कि इंस्टाग्राम पे ना डालने से पहले सोचना पड़ता है कि यार ये कितने लोग देख रहे होंगे और कितने लोग जज कर रहे होंगे। आज आप किसी को अनफॉलो कर देते हो, उस पे इतना बड़ा बतंगड़ बन जाता है। तो एब्सोल्युटली। मुझे लगता है वो पर्सनल लाइफ जा चुकी है अब। अनलेस अब जो भी आप कर रहे हो, वो हाँ, लोगों को पता है कि एग्ज़ैक्टली, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दे दैट्स नो व्हाट। इट। एंड सबसे वियर्ड चीज़ भी है कि आपके फ्रेंड्स भी फिर रियल नहीं बचते हैं। मतलब आई थिंक माय फैमिली एंड 2-3 लोग हैं गिनती के जिनको मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ, जिनको मैंने लिटरली बहुत प्राइवेट रखा है, बहुतों को मैं फॉलो नहीं करती इंस्टा पे, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि वो लोग मेरे पर्सनल फ्रेंड्स तक पहुँचे। तो एब्सोल्युटली। मैं उनके बारे में बात भी नहीं करती हूँ, कभी मैं उनको बचा के रखती हूँ। तो अभी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत जो भी फेम मिला है, उससे तुम्हारे आस-पास के लोग भी बहुत अफेक्ट इफेक्ट होंगे। होते हैं, लाइक एब्सोल्युटली। आफ्टर ओडीज़ आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एंड इट वाज़ गोइंग सो गुड एंड आई वाज़ पोस्टिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। लोगों ने इतना हेट्रेड फैलाया, इतना उस इंसान को भी बुली किया कि दैट हैम्पर्ड माय रिलेशनशिप एंड नहीं बचा वो रिलेशनशिप जैसा वो था, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कुछ रील भी डालो ना, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि सेम टाइम पे रोडीज चल रहा था। तो लोगों के दिमाग में ये हो रहा था कि टीवी पे तो इसका इसके साथ चल रहा है, और यहाँ बाहर पे इसके, बट ओह दे माय डोंट गॉड! अंडरस्टैंड कि वो 3-4 महीने पहले ही खत्म हो चुका है वो शो। आई मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। करेक्ट। सो इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया ना कि वो बंदे की भी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। ओह तो माय तब गॉड! से मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने जो मेरे क्लोज लोग हैं ना, उनको मुझे सोशल मीडिया से दूर नहीं रखना रहे। है। आई डू नॉट पोस्ट पिक्चर्स विद माई फ्रेंड्स। आई मुझे अपनी मॉम को लेके भी बहुत डर लगता है। कभी-कभी वो कमेंट करती है मेरी पिक्चर्स पे, तो मैं थोड़ा नज़र रखती हूँ कि उनके कमेंट पे किसी ने कहीं अनशन रिप्लाई तो नहीं किया, उनको मैसेज तो नहीं किया, ओह माय बिकॉज़ बहुत इनसेंसिटिव लोग हैं यार सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी स्पेशली। कुछ भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आज के एग्जैक्टली डेट। और आजकल तो कमेंटिंग पे ट्रोलिंग इतना ज्यादा हो गया है। ट्रोलिंग भी चलता है, रोस्टिंग भी चलता आई है। नो। वो जो गंदे कमेंट्स होते हैं ना, फैमिली के ऊपर, आपके अपब्रिंगिंग के ऊपर, आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, तो वो सब ना हम झेल सकते हैं क्योंकि हम उस शो का पार्ट है। बट फैमिली हमारे कैसे? फैमिली फ्रेंड्स अफेक्ट ना हो। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बैड थिंग्स आल्सो जो कभी-कभी पब्लिक कर देती है या कि हो रहा है आपके साथ, पर फैमिली को बीच में ले आएँगे दैट्स इन द कमेंट्स, इन व्हाट। द स्टोरीज़ कि ये गाली एंड पढ़ना, ये करना। आई डोंट नो उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। लाइक जैसे अभी एपिसोड्स में हर्ष को लेके भी बहुत कुछ हो रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। अभी तो मैं शूट करी थी तो मुझे ज्यादा पता नहीं चला। व्हेन आई केम बैक आई सॉ कि लोग कॉम्प्लेक्शन के बारे में उसके बात कर रहे हैं एंड फेस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे मेरे ऊपर तो मैं बहुत रोडी से सुनती आ रही हूँ कि मेरे सेप्टम को लेके तो लोग बुल काओ बोलते हैं, तो आई थिंक लुक्स बट सो प्रिटी। आई पर्सनली थिंक इट लुक्स सो प्रिटी। आई नो, बट देन मैं वही कह रही हूँ कि लोग इस लेवल तक ट्रोलिंग पे चले जाते हैं कि सो वन गर्ल राइट्स इन माय कमेंट बॉक्स दैट यू वेयर सेप्टम बट आई फील द इरिटेशन एंड आई फील लाइक हाउ, आई मीन हाउ इज दिस इवन आई रिलेटेड। टेल यू नायरा, आई पर्सनली फील जो लोग कमेंट्स में ऐसे कमेंट्स करते हैं, जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, वो खुद लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे। आई नो दे आर वेरी सैड इन लाइफ, दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर दे दे आर डोंट गेट द डूइंग। इनफ अटेंशन, तो उनको एग्ज़ैक्टली। एटलीस्ट कमेंट में वो अटेंशन मिल जाता है। मुझे कितने लोगों ने ना रिप्लाई करके ये बोला है कि वी डिड इट ओनली टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम यू एंड आई वाज लाइक
ये कैसा आइडिया है किसी से रिप्लाई लेने का कि तुम उसी इंसान के लिए गंदा बोलो, एंड देन उसको यू वांट ट्रिगर टू करो एंड देन वो आपको रिप्लाई करे, वो करेगा भी एक रिप्लाई करके गायब। सो गायब। व्हाट इज दैट हैप्पीनेस दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट? बट ठीक है, आई मीन आई गेट इट कि जॉबलेस है, कुछ है नहीं काम करने को, बट देन आई फील बैड फॉर अदर पीपल। अदर पीपल। मेरा तो क्या एंड्योरेंस बढ़ गया है भाई, रोडीज के बाद से मेरा एंड्योरेंस ऐसा हो गया है, मेरे को ना, मैं हेट कमेंट्स देखती हूँ ना, मैं पिन कर देती हूँ उनको जानबूझ राइट, करके। तो क्या होता राइट। है, मेरी ऑडियंस फिर उनके उनको बैश उनको करती है। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि ये बुलीज को बुली करो, वो करो। बढ़िया है। बट मैं जब दूसरों को देखती हूँ ना, मुझे बुरा लगता है कि यार वो इंसान ने तुम्हारा कुछ पर्सनल बिगाड़ा भी नहीं है। लाइक हमारा अगर शो में रिफ्ट है तो हम एक दूसरे को बोले समझ में आता है, बट आपका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। चलो आप किसी की परफॉर्मेंस पे बोलो, किसी ने कुछ गलत किया तो पॉइंट आउट करो, बट उसके फेशियल उस पे जाना, जाना कोई इट्स very bad. I वेरी mean, even in terms of all these contestants that they are the kind of backlash they are getting, मुझे इवन शिवेत को लेके भी सेम चीज लगती है कि शिवेत और मेरा कितना भी राइवलरी रहा हो, कुछ भी रहा हो, उसको जिस तरीके से लोग लिखते हैं ना, आई फील बैड कि मतलब इतना भी क्यों ज्यादा कर रहे हो? नहीं वो करना पहले चाहिए। की बात है, खत्म हो गया है। वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम या दैट। आई मीन वो जैसे अभी आकृति वाला एपिसोड भी हुआ या जो भी और जैसी भी चीजें थी, मतलब लोग इतना गंदा गंदा लिख रहे थे, तो मुझे एक टाइम पे उसके लिए भी बुरा लगा कि यार इतना लेवल पे जाके मत करो किसी को। एब्सोल्युटली। हम लोग जब शो की बात कर रहे हैं नायरा, ठीक है? मेरे को और हम सबको एक चीज़ जानना है जो मे बी शायद हम लोग शो में समझ नहीं पाए एक चीज़। हम्म। देयर वाज़ अ लिटिल थिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड उन्नति, ओके। ठीक है? तो तुम्हारे और उन्नति के बीच में कुछ चल रहा था, पर मे हम्म। बी हम लोग शो देखते वक़्त हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाए। व्हाट बिकॉज़ व्हाट बहुत वाज़ सारे दैट? क्लिप्स कट गए थे। सो अभी एक तो क्या था कि मैं शूट पे थी, तो मेरी साइड ऑफ द स्टोरी तो किसी ने सुनी नहीं, एंड ऑडियंस हुँ, इज़ लाइक सो क्विक कि एक इंसान ने अपना नैरेटिव दे दिया तो वही नैरेटिव हो गया। दे डिड नॉट इवन गिव द अदर पर्सन अ चांस टू टेल कि व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड। सो मेरा ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था, लोगों को लगता है कि आई एम जेलस और वो ऑल दैट, या मेरा फर्स्ट डे से ही कुछ था। ऐसा कुछ था नहीं। बेसिकली मैंने कभी प्लेग्राउंड देखा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, क्या नहीं। तो जब हम इनिशियल डेज में मिले थे ना, आई हैड नो आइडिया अबाउट हर। वी स्पोक, हाय हेलो हुआ, और रही बात फ्रेंडशिप और ट्रस्ट की, वो सब तो बहुत बात की बात है। इनिशियल डेज में ही शी स्पोक अबाउट हर एक्स और वट एवर बॉयफ्रेंड जो भी है वो, कि हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, करेक्ट, हमारी हाँ। लड़ाई हो रखी है। एंड हम ऐसी बात करते थे कि कोई मिला यहाँ पे, नहीं मिला तो शी कैजुअली सेड कि नहीं मिला तो वो तो अनब्लॉक कर ही देगा, वो तो है ही। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट डे से तो यही इमेज थी, बट मैंने कभी उस चीज को आउट लाउड नहीं बोला, बिकॉज माई फ्रेंड वॉज नेवर इन्वॉल्व इन दैट। एब्सोल्युटली। तो जब मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने उस चीज को इतना अटेंशन भी नहीं दिया। सबकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, सबका जो भी होगा शो के बाहर। देन हम लोग आगे जब रूममेट्स बने, तो मेरी इनिशियली रूममेट डिकीला थी, करेक्ट। फिर बाद में रूम चेंज हुआ, स्वॉप हुआ, जब हमको एक्चुअली पता चला स्प्लिट से या क्या, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट हमारे रूम स्वॉप हुए, और मैं और रूरू एक रूम में हो गए और डिकीला और उन्नति एक रूम में उन्नति हो हो गए। गई। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं अबाउट उन्नति और एनीथिंग। डिकीला वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि शी लाइक उन्नति टोल्ड हर दैट ये रोडीज वालों को ज्यादा भाव मत देना, सर पे चढ़ जाते हैं। तो और हमारे सामने उसने ऐसे बोला था कि शी डजंट नो रोडीज में कौन आया था कौन नहीं। तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन ये आया कि मतलब वो या तो ऐसा दिखा रही है कि मैंने रोडीज देखा है, बट मुझे इतना भाव नहीं देना वरना सर पे चढ़ जाएंगे, विच इज ठीक है, विच इज राइट इन हर पॉइंट, और मुझे कोई ऐसा कोई भाव चाहिए नहीं चाहिए था, भी नहीं। बट मैं बता रही हूँ कि ऐसा हुआ ये चीज है। करेक्ट। तो तब से थोड़ा एक हो जाता है ना कि यू नो दैट इस इंसान से आपको ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। फिर रूरू और हम लोग बात करते थे, तो हमारा ये जजमेंट था, हमको ये लगा दैट मे बी वी कैन नॉट ट्रस्ट हर। दैट वाज़ द ओनली थिंग। ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि नहीं हमारी दुश्मन है, और ये जो फेक क्लेम्स है कि हमने ऐसा बोला कि हमारी साइड चूज़ करो या ऐसा, कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट रूरू एंड आई बॉन्डेड वेल, एंड देन दिकीला एंड उन्नति उन्नति बॉन्डेड बॉन्डेड वेल। वेल। बट सबसे पहले बताने वाली डिकीला ही थी, वरना हमको कुछ पता नहीं था कि उन्नति किसी से क्या बोल रही है, क्या नहीं। एंड बट देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, जब हम लोग एग्ज़ाइल में साथ में बैठने लगे, उठने लगे, एंड ऐसा कुछ बीफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज़ ओके। एंड इन बिटवीन शी शेयर्ड सर्टेन थिंग्स, एंड मैं उसको समझाती थी कि मेरे साथ भी सेम शो में ऐसा हो चुका है कि वो मेरी आइडेंटिटी उस इंसान के आसपास रिवॉल्व अराउंड हो गई है, तो इस शो में जस्ट बी केयरफुल। एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, यू आर जस्ट मतलब गिविंग हर गुड या वार्निंग, आई गुड मीन वार्निंग। या। मेरा मतलब
पता नहीं क्यों सामने वाले ने सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही बताया. इट वाज देयर वर गुड पार्ट्स आल्सो दैट आई यूज्ड टू बी देयर फॉर हर. आई यूज्ड टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट बी केयरफुल. इवन व्हेन शी वाज गोइंग ऑन डेट आई टोल्ड हर दैट जस्ट बी वेरी केयरफुल, इट विल कम ऑन कैमरा एंड बाद में अगर तेरे को रिग्रेट हो तो जस्ट बी केयरफुल. आई वाज ट्राइंग टू बी ऑल दैट जितना मैं गाइड कर सकती थी. एक शो करने के बाद दिकीला के लिए भी सेम था. उसको भी मैं समझाती थी कि देख हर चीज कैमरे पे कर वरना लोग मुकर जाते हैं, चीजें नहीं एक्सेप्ट एब्सोल्युटली। करते. सो हर चीज मैंने समझाई. आई हैड बीन लाइक अ गुड फ्रेंड वट एवर यू से. अब चीजें खराब कब हुई जब वो चाय वाला टास्क था. तो चाय राइट। वाले टास्क में उसने कुछ चीजें बोली, मैंने वो चीजें बताई. और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने उस टास्क को बहुत सीरियसली ले लिया. मतलब हमको ये बोला गया था कि सीक्रेट्स लिखने. वहां पे कोई रूमर्स की बातें नहीं हो रखी, अब सीक्रेट्स से प्रॉपर. और मैं हर टास्क एकदम 100% से कर रही थी, तो मुझे पता था कि मेरे को ये टास्क जीतना है. जीतना है। और मैंने क्रू से पूछा भी कि क्या लेजिट सीक्रेट्स चाहिए, अब बाद में पता तो नहीं चलेगा किसका है किसका नहीं. तो वो कुछ आंसर दे नहीं रहे थे. तो पहले मेरे को ये लगा कि मुझे एक्चुअल सीक्रेट्स लिखने पड़ेंगे टू विन दिस गेम. सो फॉर मी मेरे लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट था गेम उस वाज़ वेरी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट एट टाइम दैट पे. टाइम। और कोई मेरा उस वक्त कोई मेरी बेस्टीज नहीं थी कोई वहां पे कि नहीं मैं वो नहीं करूंगी. तो और उस टास्क से पहले भी ना हुआ ये था एक्चुअली, मैं बताना भूल गई. सो जब ये सब बातें हो रही थी ना तो शी केम एंड शी टोल्ड मी कि दिग्विजय इज गेटिंग सीरियस. तो मैंने उसको सिर्फ फॉर ये बोला, उन्नति। हाँ तो मैंने उसको सिर्फ ये बोला था कि मुझे नहीं लगता वो इस टाइप का इंसान है कि वो सीरियस होता होगा. मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसको जानती हूँ इतना कि वो नहीं होगा. आई डोंट नो हिम दैट मच, हम लोग इतने कोई क्लोज फ्रेंड्स थे नहीं. बट आप एक सोचते हो ना देख के इंसान किसी का परसेप्शन, जैसे मेरे को देख के लोग जो बोलते हैं वैसे मुझे भी दिग्विजय को देख के ऐसा लगा था कि ही वाज नॉट दैट सीरियस टाइप ऑफ अ गाय. वो बाद में उसने मुझे जब हम डेट पे गए थे उसने बताया कि नहीं नहीं ही इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन कि एक लड़की मिल जाए तो ही इज गुड ही विद इज़ इट. गुड विद ये इट। मुझे नहीं पता था, ये मुझे मेरा परसेप्शन था. तो आई जस्ट टोल्ड हर मुझे लगता नहीं है ऐसा कि वो सीरियस होगा, और मुझे तो लगता है उसकी 4-5 होंगी बाहर. मतलब मैं ये सेम सचिन के लिए भी बोलती हूँ. एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली। दिस इज अ फ्रेंडशिप थिंग, यू आर नॉट बिचिंग और यू आर नॉट या, पुटिंग या बैड थॉट्स और आप एब्सोल्युटली। आग नहीं लगा रहे हो. इट्स योर दिस थिंग कि मेरा दोस्त शायद ऐसा ही मेरा होगा. हो सकता है, हाँ। हाँ, तो इन दैट वे आई सेड एंड बट देन आई वाज नॉट श्योर. तो वो बार-बार यही बोलती थी कि ही वांट्स टू टॉक टू माय मदर बट माय मदर लाइक्स माय एक्स और व्हाटएवर. तो वो सारी चीज़ें जब वो बोलती थी ना तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा मेरी और दिग्विजय की बीफ चल रही थी शो में उस वक़्त, तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं नहीं कर थी। रही थी. और मुझे ये मेरे लिए बहुत डिलेमा था कि एक बंदी जो मुझे ट्रस्ट करके चीज़ बता रही है, बट एट द सेम टाइम वो मेरे ही दोस्त के अगेंस्ट बता रही है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दोस्त की तरफ पहले बनता है. ये हुँ। जो दुनिया जहाँ की गर्ल कोड गर्ल्स गर्ल ब्ला ब्ला शिट ये करते हैं, भाई दैट डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर मी एट दैट टाइम. फॉर मी इट वाज फॉर दिग्विजय फर्स्ट. अगर कोई और इंसान शायद होता तो मैं शायद उतना नहीं नहीं। लेती. बट उस जगह पे सचिन या दिग्विजय दोनों में से कोई भी होता ना, इट्स नॉट जस्ट दिग्विजय, सचिन भी होता ना, तो मेरे दिमाग में यही आता कि नहीं मेरे फ्रेंड की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. तो तब भी मैं थोड़ा श्योर होना चाहती थी क्या है क्या नहीं, बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं कैमरे पे बात ना करूँ ना तो लोग बिलीव नहीं करते. तो ऑफ कोर्स मैं बोलती तो कोई बिलीव भी नहीं करता. तो फिर मैंने उसको बोला कि तू इशिता से बात कर, इशिता नोज हिम बेटर, क्योंकि बेटर। आप 5-6 साल निकाल के बैठे हो तो उस बंदी को ज्यादा पता होगा. तो मैंने उसको बोला तू इशिता से बात कर, दैट पर्सन कैन टेल यू एग्जैक्टली कि दिग्विजय के दिमाग में क्या चल रहा होगा. इशिता। क्योंकि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ. मैंने उसको सीधा ये बोला था ये चीज़. और मैं तो गुस्से में थी, मैं तो दिग्विजय से लड़ाई लड़ रही थी, तो मेरे को तो वैसा वो सॉफ्ट कॉर्नर उस टाइम पे आ भी रहा था, मैं गुस्से में भी थी. बट एट द सेम टाइम आपकी वो फ्रेंडशिप होती है ना कि आप गुस्सा हो बट देन यू कैन डू बैड बी टू बैड देम, टू देम, वैसा वाला एब्सोल्युटली। भी होता है. तो मैं तो डिलेमा में थी, बट मैंने दिमाग वहाँ यही लगाया कि इसको अगर कोई सही एडवाइस दे सकता है, और अगर मान लो ये बात कभी बाहर भी आती है कि कभी मुझे दिग्विजय के फेवर में कोई चीज करनी पड़े तो कोई बिलीव नहीं करेगा, तो एटलीस्ट आई हैव वन वन पर्सन पर्सन की टू जो सपोर्ट यू। बोलेगा ये चीज. तो वो गई इशिता के पास. मैंने कभी इशिता को नहीं बताया, इट वाज हर ओनली हु टोल्ड एवरीथिंग. एंड इशिता ने बाद में बताया कि शी सेड कि उसको शादी करनी है या जो भी है. वो तब तक भी ओह! बातें थी, बट मेरे अंदर डिलेमा था कि यार ये चीज मैं अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ, बिकॉज फिर मेरे फ्रेंड के साथ गलत होगा. और उसने एब्सोल्युटली। ये उसके वर्ड्स थे, चाहे आज वो सीरियस हो चाहे वो टुगेदर हो चाहे वो जैसे भी हो, बट ये उसके वर्ड्स थे कि मैं दिग्विजय को घोस्ट कर दूंगी. अब उसने फन वे में बोला या वो जैसे भी बोला, बिकॉज उसके लिए ओवरवेलमिंग हो रहा था. घोस्ट कर दूँगी मतलब एपिसोड मतलब मतलब सीज़न खत्म होने के शो बाद, के बाद, शो के मतलब बाद। वो ऐसे भी बोलती थी कि थोड़ा टाइम कंटेंट वॉन्टेंट भी बना लेंगे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे डील
करो, बिकॉज दिग्विजय वाज एक्चुअली गेटिंग सीरियस फॉर हर, दैट वाज वेरी मच विजिबल। एंड Okay. ऐसा नहीं कि शी वाज नॉट लाइकिंग हिम, बट देन उसका थोड़ा रुझान जो था वो उसके एक्स की तरफ था, जो उसने मुझे बोला। तो Got मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गलत नहीं कर सकती, बट मेरी उससे बात भी नहीं हो रही थी और मैं खुद दिग्विजय से गुस्सा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये आके मुझे सॉरी it. बोलेगा कि नहीं नायरा, मैंने वो चीजें गलत बोली, और मैं भी अपने ईगो में कि नहीं, मैं तो जाके इससे बात करूंगी ही नहीं, ये जब तक सॉरी नहीं बोलेगा मैं बोलूंगी ही नहीं। तो जितने दिन मेरी बात नहीं हुई, बात मेरे अंदर थी। एंड आई थिंक जब मेरी लास्ट बात हुई दिग्विजय से, जब हमारा नॉर्मल कन्वर्सेशन होने लगा, फिर मैंने उससे बोला वो चीज़, और रूम में बोला मैंने, अगर मुझे सिर्फ कैमरे के लिए करना होता तो मैं सिर्फ चाय वाले टास्क में बोलती। Absolutely. मैंने एक दिन पहले उसको अलग से बोला उसको बुला के। कि उसने ऐसा-ऐसा बोला है, एंड उससे पहले वाला जो डोम भी था ना, जब उन्नति को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको साइड में भी यही बोला था कि वो बंदी देखो घोस्ट करने की बातें कर रही है और तू उसको बचाने की बातें कर रहा है। ये चाय वाले टास्क से पहले की बात है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी। जो ये लोग कह रहे हैं कि तुम दोस्त होती तो तुम पहले बताती। भाई जब मेरी बात हुई ना तब मैंने बोला, बट आई थिंक आई डोंट नो दिग्विजय को पता था या जो भी था, जैसा भी उसका रिएक्शन था, उसने मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन, ऐसा कुछ वो नहीं दिया कि नहीं मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया बताने का। अब Absolutely. मुझे इस चीज़ को वो नहीं करना है, वो इनका लुकआउट है। फिर जब चाय वाला टास्क हुआ ना, तो ये ऑडियंस को बात पता नहीं है। मैंने सिचुएशनशिप नहीं लिखा था उसमें। मैंने लिखा था कि शी हैज़ एन एक्स आउटसाइड एंड शी विल गेट बैक टू हिम और व्हाटएवर। सिचुएशनशिप वाला तो वर्ड ही नहीं था मेरा, तो मुझे लगा इशिता ने लिखा होगा। जब वो लिखा गया और जब वो बोला गया, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा है कि मैंने लिखा, क्योंकि मतलब मुझे लगा था, मुझे ये बात पता थी ना, तो मैंने ही लिखा होगा। फिर मेरा दिमाग दौड़ा कि यार मैंने ये तो बात लिखा ही तो नहीं है। सिचुएशनशिप वाला तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो जब वो चाय फेंकने के लिए इशिता के पास जा रही थी और दिग्विजय ने यहाँ मेरे को देख के भी बोला कि यार इसने मान लिया, मैंने इसने बोला है। तो मैंने दिग्विजय को बोला एकदम से कि नहीं मैंने नहीं बोला है। वो आप देखना मेरी लिप सिंक भी हो रही है उस वक़्त। तो इशित मुझे लगा इशिता ने बोला होगा, तो जब उस पे चाय पड़ी तो मुझे लगा ठीक है। फिर मेरी अभी मतलब शो के बाद बात हुई, तो इशिता ने बोला मैंने तो वो लिखा ही नहीं है। तो नाउ द फिर क्वेश्चन इज़ कि अगर मैंने नहीं लिखा, इशिता इशिता ने ने नहीं नहीं लिखा। लिखा, तो किसने लिखा? Oh my God. नाउ आई लीव इट अप टू द ऑडियंस टू डिसाइड एंड टू अंडरस्टैंड वो किसने लिखा। मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आई But we थिंक all know. आई डोंट नो एनीवे सो तो वहाँ पे जब मैंने वो लिखा ना, तो अगर मुझे सीन क्रिएट करना होता या उसकी बातें बाहर निकालनी होती, तो मैं तभी बोल देती। जब उसने इशिता पे फेंका, या मैं तभी चीज़ें बाहर निकाल देती। मैं तब भी चुप थी। मैंने कहा ठीक है, वो सीक्रेट जो भी, वो टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, वो हो गया। और मेरे लिए एक तो डिलेमा ये भी हो रहा था कि क्या इसमें जीतने का पॉइंट ये है कि आपका नाम बाहर नहीं आना चाहिए, या फिर जीतने का पॉइंट है कि आपका नाम बाहर आना चाहिए। मैं उसमें Hmm. बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। तो मेरे को फिर ऐसा लगने लगा मे बी जिसके ऊपर ज़्यादा चाय जा रही है, जिसका नाम ज़्यादा आ रहा है, वो वो जीतेगा। जीतेगा। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू एक्सेप्ट कि भई मतलब मैंने किया मैंने है। लिखा है। वो बैकफायर हो गया, लेकिन आई वाज़ Your थिंकिंग कि आई idea विल was to विन। win. या दैट्स Okay. व्हाट। मैं तब मेरा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ टास्क में था। मेरा कुछ कहीं वो नहीं था कि मेरे को इसका सीक्रेट निकालना है, उसका मेरा सिर्फ़ था टास्क करना है। टास्क जीतना है। तो अगर मेरा वो पर्सपेक्टिव होता तो मैं तभी बोल देती, मैं चुप रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो। फिर क्या हुआ कि जब वो दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें उन्नति का नाम था, और जब वो चीज़ उसने मानी नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला इफ यू आर लाइंग देन आई विल से एवरीथिंग जो सच है। फिर क्योंकि मैं गलत दिख रही थी, फिर क्या हो रहा था कि वहाँ पे ये दिख रहा था कि मैं झूठ बोल हम्म। रही हूँ। तो फिर मुझे लगा नहीं, देन अब तो देखो जो आ रहा है बोल दे तू नायरा। तो वो आई थिंक मुझे लगता है मे बी आई वाज़ रॉन्ग कि आउट ऑफ रेज या आउट ऑफ एंगर वो चीज़ें निकली, बट मेरा ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं था कि नहीं मुझे उस टास्क के थ्रू किसी इंसान को एक्सपोज़ एक्सपोज करना करना था। है। वो आउट ऑफ सिचुएशन हो गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब उसने वो भी चीज़ें डिनाई कर दी, तो फिर मेरे लिए एक वो रिपल्सिव आ गया कि यार मेरे को फिर ऐसा लगता है कि फिर आप एक्सेप्ट कर लो, जो है सो है। ठीक है, गाली पड़ेगी, जो पड़ेगी, फिर एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि बोला तो है ना, बोला तो है तो कहीं। कर दो। फिर वो जब उसने नहीं किया ना, फिर मेरे को लगा कि यार इसमें तो मैं स्टूपिड दिख रही हूँ, फिर तो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। तो फिर मेरा ना वहाँ से थोड़ा मेरा उसका वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद वो एम्पलीट्यूड में इतना ज़्यादा इसलिए हो गया कि फिर जब अरबाज़ और कशिश वाला जो सीन हुआ ना, तो कशिश इज़ कैपेबल इनफ टू फाइट हर ओन बैटल। उसको टेक एब्सोल्युटली। मैं बता रही हूँ, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो बैडअज़ है, वो बैंड बजा सकती है इंसान की। बट आई सॉ कि लोग उसके कान में चीज़ें डाल रहे हैं कि तू ये चीज़ बोल, वो चीज़ बोल।
तो पंप अप करने के लिए। तो फिर मुझे पता चला कि उन्नति भी उसके लिए बोल रही थी अरबाज़ के लिए कि तुम ना थोड़ी चीज़ें बचा के रखो, तुम डोम में बोलना। ओह तो माय फिर गॉड! मुझे लगा दैट इफ यू विल कम ऑन माय गाय, मतलब अब तो मुझे माय गाय बोलने में बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है, सॉरी, बट देन उस वक़्त मेरा ये एब्सोल्यूटली क्योंकि दैट परसेप्शन ही था। वाज़ योर या कनेक्शन। तो फिर मैं ऑफ कोर्स बोलूँगी। तो वो सीन काफ़ी कट हुए हमारे फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, कि जिसमें मैं दिग्विजय से लड़ भी रही हूँ। मैंने उसको बोला कि इसको समझा दे कि अरबाज़ के बारे में कुछ भी ना बोले। देन फिर मुझे पता चला कि उसने अरबाज़ और मुझे फेक बोला। यार अरबाज़ की साइड से फेक था, मैंने तो नहीं किया ना, और शो के अंदर तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो मुझे हिंट भी हिंट नहीं भी नहीं था, था, अरबाज़ ने किसी को बताया ही नहीं कुछ भी था। नहीं था। तो फिर उस टाइम पे फेक बोलना तो फिर वो और ट्रिगरिंग था कि फिर मेरे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव आ रहा था कि तो तुमने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, तुम खुद वो चीज़ कर रहे हो, फिर तुम मुझे और अरबाज़ को फेक बोल रहे हो। तो फिर मेरा ना वो एम्पलीट्यूड बढ़ गया कि मतलब यार अब तो नहीं जम रहा है ये। तो फिर मेरा ना पारा बहुत हाई हो गया कि नहीं यार। और फिर वो ना क्या होता था, हर हर आर्गुमेंट में ना वो बार-बार ये बोलती थी कि मैं बोलूँ आपने अरबाज़ के लिए क्या किया? मैं बोलूँ? तो मैं उसको बोलती थी मुझे थ्रेटन मत करो, तुम बोल बोलना है दो, तो जो बोल दो। बोल दो। हाँ, क्योंकि अरबाज़ को लेके जो भी चीज़ें थी ना, वो मैं अरबाज़ से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। इन टर्म्स वेरी ऑफ नाइस। रिलीजन हम दोनों ने ही ये बात कर ली थी कि उसकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, हमारा कन्वर्सेशन हो चुका था। तो जब मैं उस बंदे को ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो रिलीजन वाला है, तो आई डोंट फियर कि तुम कुछ भी बोलो वो चीज़। एब्सोल्यूटली। तो लेकिन बार-बार मुझे ये बोलना, तो फिर वो और बढ़ने लगा वो सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि कैमरे पे दिखता नहीं तो ऑडियंस मानती नहीं। तो ऑडियंस को सिर्फ़ मेरा वो दिख रहा है कि नायरा के रिएक्शंस आ रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग। हैपनिंग बिहाइंड। फिर उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टास्क में जो मेजर चंक कट हो गया, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी एपिसोड से इतना बड़ा चंक आउट हो गया, जो इतना बड़ा रीज़न था लड़ाई झगड़े होने का, वो भी मैंने नहीं किया। जो लोग कह रहे हैं कि नायरा उस चीज़ का सीन बनाना चाह रही थी इसलिए वो कट हो गया, भाई मैंने सीन नहीं बनाया था। नॉर्मली वहाँ पे पिचिंग की बात हो रही थी और इतने में डकीला ने बोला कि नायरा तो ऐसा बोल रही थी आइडल मैच बनने के बाद कि अरबाज तो निकल जाएगा, अरबाज तो रहेगा नहीं। तो मेरे को फिर वो लगा कि यार ये क्या बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अरबाज को बचाने के लिए थ्रू आउट लगी हूँ। आप एक-एक एपिसोड देखो, मैंने डील करी एब्सोल्युटली। दिग्विजय से कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए। मैं आइडल मैच बनने के लिए भी रेडी नहीं थी। मैं लिटरली नहीं रेडी थी। मेरे को याद है अरबाज बैठा था, यहाँ बैठा था और मैं नहीं जाना चाहती थी। अरबाज मुझे फोर्स कर रहा है तू जा, तू जा। और मेरे को पता है बन जाएँगे, बिकॉज़ आप एक शो का नैरेटिव नैरेटिव समझते हो समझ। कैसा होता है। तो मुझे पता था और मैं नहीं बनना चाह रही थी। तो पर क्यों नहीं बनना चाह रहे थे? यार बिकॉज़ आई थिंक इनिशियली तो मेरा ये था कि गेम था, बट समव्हेयर आई गॉट अटैच्ड टू टू अरबाज़ अरबाज़। विद व्हाटएवर थिंग्स ही वाज़ डूइंग फॉर मी। तो मेरे को ये था कि अगर मुझे जीतना है ना, तो मुझे अरबाज़ के अरबाज़ के साथ साथ ही ही जीतना है। जीतना अगर मैं नहीं जीत रही हूँ तो भी इट्स फाइन। तो उसने फिर मुझे ये चीज़ बोला कि अपन दोनों में से कोई भी सेव होगा तो वी कैन है। वी कैन सेव सेव ईच ईच अदर। अदर, तो करेक्ट। वो चीज़ से मैं थोड़ी कन्विंस हो गई कि मैंने कहा ठीक है। बट देन वो चीज़ भी उसको मुझे 10 बार समझानी पड़ी। मुझे याद है, आपको बीप करना पड़ेगा ये वर्ड, कि मैं नहीं मान रही थी। मैं लिटरली नहीं मान रही थी। उसने मुझे बोला, लिटरली ही सेड दैट। शिट! और मैं शॉक्ड, मैं ऐसे अरबाज को देख रही हूँ कि क्या मुझे गाली बक रहा है इतनी सी बात पे। और वो मतलब मैंने बोला कि अरबाज तो गाली बक रहा है मेरे को, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। उसको पता नहीं रियलाइज हुआ कि उसने क्यों बोल दिया या क्या। तो मतलब वो इतना प्रेशराइज मुझे कर रहा था आइडल मैच बनने के लिए। फिर जब उसने मुझे पॉइंट बोला, तो मैंने वो सिर्फ पॉइंट की वजह से मैंने सोचा कि नायरा थोड़ा दिमाग लगा, हम दोनों तो नहीं बने आइडल मैच, और अगर बन गए तो एटलीस्ट वी अरबाज कैन को मैं पूरा थ्रू आउट लेके जा सकती हूँ एंड तक। तो फिर उसके साथ हम गए और वो चीज़ हुई। हम बन गए। तो ये दिमाग में लाना कि आइडल मैच बन गया तो अरबाज को मैं गेम से आउट कर दूँगी, वाज़ आउट ऑफ द पिक्चर। ये तो मतलब बात ही बहुत इलॉजिकल है। द आइडिया वाज़ टू सेव हिम, इट वाज़ नॉट टू। एग्जैक्टली, एंड इट वाज नॉट माय आइडिया टू गो विद हिम। लाइक इवन अरबाज क्लेम्स कि मैंने भेजा है इसको। और फिर उसके बाद ना हर बार मैं डील करती थी, मतलब मैं कितना लड़ी हूँ अरबाज के लिए डील करने के लिए कि नहीं तू मेरे को वर्ड दे, तू अरबाज को सेव करेगा तो ही ये चीज होगी। उसके बाद जब हम एंटरटेनमेंट टास्क भी था, एंटरटेनमेंट नहीं सॉरी मार्केट टास्क था, उसके बाद भी मैंने सचिन से लिटरली बोला कि अगर स्वास्तिका अरबाज सामने खड़े होंगे तो अरबाज को सेव करेगा। मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये पॉइंट रखना कि मैं निकाल दूंगी उसको, तो मतलब ठीक इलॉजिकल है, इलॉजिकल था। इलॉजिकल है। तो वो जब पॉइंट आने लगा ना, तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया। एक क्लिप भी है, वो भी क्लिप बहुत आधी कट हुई है कि उस टाइम में ना मेरा इतना ब्रेकडाउन हो गया, पूरे सीन में मेरा ब्रेकडाउन हो गया। तो उस टाइम मेरा डिकीला से फाइट हुआ, मेरा फिर उन्नति भी उसमें जॉइन हुई तो उन्नति से भी फाइट हुआ। तो मेरा लिटरली मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग सेव हो, मैं चाहती थी मैं कि ये अनसेव हो और मैं डंप कर दूँ इनको, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे उन्होंने जो सब चीज़ें करी थी। तो अब हुआ ये कि वो लोग टास्क जीत गए। तो ऑफ कोर्स आई वाज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि एक तो मैं रो रही थी, बहुत रोई थी, मैं पूरा चंक कट हो गया। मैं बहुत मुश्किल से रोती हूँ, तो मैं जब रोती हूँ तो मेरा वो दिखता है। फिर दिखता है। वो
मैं रोई और उसके बाद का मेरा चेहरा पूरा ऐसा था कि मेरे को पूरे थ्रू आउट मेरे को याद ही नहीं किसने क्या टास्क करा, क्या नहीं करा। मैं अपने ज़ोन में थी कि मेरे मेरे साथ इमोशंस क्या का हुआ है? मज़ाक उड़ रहा है दोबारा से यहाँ पे। तो क्योंकि पहले भी शो में सेम चीज़ें हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था फिर से यार तुम मेरे इमोशंस को ड्रामा, फेम का नाम दे रहे हो। तो मैं फिर मेरा ये हो गया। तो लोगों को ही लग रहा है कि शी हैज़ अ बीफ विद उन्नति, वो उन्नति जीत गई इसलिए वो गुस्सा है। नहीं भाई, वो टिकीला के लिए था, वो ओह उन्नति के लिए माय नहीं था। गॉड! ओह वो उस माय टाइम पे ये था कि टिकीला जीत गई थी, तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्यों जीत गई, तो मेरा वो फेस था। बट जस्ट बिकॉज़ आई डिड नॉट कम लाइव, सेड ऑल दैट, आई वाज़ बिज़ी शूटिंग, तो लोगों ने वही नैरेटिव वे बना के आगे बढ़ लिया। कि तुम्हारा और उन्नति का कुछ चल एग्जैक्टली रहा exactly. है। तो वहां ऐसा कोई मेरा बीफ उन्नति के साथ नहीं था, इट वाज विद डिकीला। एंड आई थिंक उसके बाद फिर उन्नति और मेरा नॉर्मल हो गया था। हम लोग मतलब वो लड़ाई वड़ाई हुई, हम रूम में आए और मैंने लिटरली मैं बहुत रो रही थी। और यहाँ पे दिग्विजय बैठा था, अरबाज बैठा था, पूरा चंक कट हो चुका है पूरा का पूरा। और मैंने लिटरली बोल दिया था कि मैं पावर नहीं चाहिए मुझे, जो डिसीजन तू दिग्विजय लेगा तू लेगा, ले आई ले। एम लीस्ट इंटरेस्टेड नाउ, क्योंकि मेरे इमोशंस का मजाक बन रहा है। मैं अपने इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और उसी पे लेबल लगाए जा रहे हैं कि मैं उसको और वो निकालने की कैमरा में कोशिश कर आया रही नहीं वो हूँ। चीज़। कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। और मैं रो रही हूँ और ये लोग मुझे बोल रहे हैं और वहाँ से ना टिकीला कुछ बोल रही है, उन्नति कुछ बोल रही है, कोई कोई कुछ तो बोल रहा है। और मैंने बोला मुझे इस कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं होना, बिकॉज़ आई ऑलमोस्ट गिव अप। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने महीने से एक बैटल लड़ती हुई आ रही हूँ कि किसी इंसान ने ये बोला, लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं और मैं अब फिर दोबारा से वो बैटल लड़ूँ, तो मैंने कहा मुझे इस चलो। कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं होना। और मेरे को ना नहीं चाहिए कि कोई मेरे को इतना वल्नरेबल देखे। मैं ना पता है शैंकी, मैं लड़ सकती हूँ जब मैं नॉर्मल हूँ। अगर मेरा ब्रेकडाउन इमोशनल हो हो रहा जाओ। है ना, मैं नहीं लड़ सकती हूँ। जैसे एक इंसिडेंट आकृति वाला भी हुआ आई था नो। कि लोग बोल रहे थे कि तुमने क्यों नहीं जवाब दिया। व्हेन आई एम इन माय लोएस्ट ना, डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्नैप बैक एंड फाइट। आई नीड माय टाइम टू प्रोसेस माय इमोशंस। Same thing happened in Roadies also. When या you broke down, you couldn't fight या after that. या दैट्स व्हाट। एंड फिर ये था कि मैं फिर दूसरे रूम में चली गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड स्वास्तिका आए। तो स्वास्तिका वाज द ओनली पर्सन हु न्यू, क्योंकि स्वास्तिका और मैं, अरबाज और सचिन हम रूम में बैठते थे। और ना मेरी कंप्लेंट्स हुआ करती थी अरबाज से कि यार तू ढंग से पैम्पर नहीं करता, मुझे ये चीज पसंद है तू वो नहीं करता। तो स्वास्तिका उसको समझाती थी, अरबाज बोलता था मैं कैसे करूं, मुझे एक्सप्लेन करो। तो स्वास्तिका उसको समझाती थी। तो स्वास्तिका न्यू दैट वट एवर आई हैड फॉर हिम इट वॉज जेन्युइन। और उसी टाइम पे सिर्फ स्वास्तिका थी जिस पे मैं रो सकती Trust. थी, ट्रस्ट कर सकती थी। सो शी केम एंड बहुत मुश्किल से हैंडल किया। तो वो पूरा चंक कट हो गया। तो Oh my God. मतलब लोगों ने ये नहीं देखा कि मुझ पे भी एलिगेशंस लगे, Correct. मेरा भी रिएक्शन निकला। मैं क्यों रो रही हूँ, देयर इज अ रीजन। इसलिए नहीं रो रही हूँ कि किसी ने लड़ाई कर ली तो मैं रो रही हूँ। मेरे इमोशंस का दोबारा मजाक बना है वहां पे, इसलिए मैं रो रो के बोल भी रही हूँ कि मेरे इमोशंस मजाक नहीं है। नहीं है। लेकिन पूरा चंक उड़ गया तो लोगों ने एक नैरेटिव बना लिया कि भाई इसको तो पर्सनल बीफ है उन्नति के साथ, नहीं इसको तो कुछ है। भाई इतना कुछ था ही नहीं जितना मतलब वो दिखाया गया। दिखाया गया एंड है। उससे नायरा, बिकॉज़ हम लोग हार्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यू यस। आर मेंशनिंग कि बिकॉज़ एंड ये पहली बार नहीं हुआ है या। नायरा तुम्हारे साथ कि हम लोग ने रोडीज़ में भी सेम चीज़ देखा है। सेम चीज़ रिपीट हुआ है स्प्लिट्सविला में भी। ठीक है? हम्म। सो नाउ वी वांट टू नो, बिकॉज़ लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, मे बी इट इज़ नॉट अफेक्टिंग यू और मे बी इट इज़ अफेक्टिंग टू मच। सो हम लोग आपसे डायरेक्टली जानना चाहते हैं, हाउ डज़ अ हार्ट ब्रेक फील्स लाइक? मैं ये बोलूँगी कि स्प्लिट्स में हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, रोडीज़ में हुआ था। बिकॉज़ रोडीज़ में मैं बोल रही हूँ ना बहुत नाइव थी, बहुत जेन्युइन निकला था जो था, तो वो एक्चुअल था, बुरा लगा था। बट स्प्लिट्स में मुझे हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यू नो आई डोंट नो लोग रिलेट कर पाएँगे इससे कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ टीवी पे हुआ है, उनके साथ शायद रियलिटी में होता होगा कि यू नो लोग पहले तो खुद आपकी लाइफ में आते हैं, खुद एफर्ट्स लगाते हैं, आप गार्डेड रहते हो, आप बोल देते हो कि मुझे नहीं करना है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ किसी भी तरीके के रोमांटिक रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके के कनेक्शन में, कुछ भी। एंड आप आते हो, आपको पता है वो इंसान वुंडेड है, लिटरली बैंडेजेस लगी हुई उस इंसान पे, और आप फिर भी उस इंसान को वो एक होप देते हो, लीड ऑन करते हो। और उस लीड ऑन करने के बाद जब वो इंसान अपने गार्ड्स ड्रॉप डाउन करता है, तुम्हारे तो लिए? हाँ, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली, और तुम पल्ला झाड़ लेते हो बोल के कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी साइड से तो कुछ था ही नहीं। तो वो मोमेंट इतना गंदा होता है ना, इट्स नॉट इवन हार्ट ब्रेक। मुझे लगता है हार्ट ब्रेक तो अब बहुत कॉमन हो चुका कॉमन है हो गया। जनरेशन के लिए कि वो होता रहता है। बट ये इस इमोशन को मुझे नहीं पता मुझे क्या मे बी लेबल देना एक चाहिए। बोल सकते हैं कि वो पेन होता है, एक बिट्रेयल बोल सकते हैं कि यहाँ पे तुम नहीं यार, ये भी बहुत छोटे वर्ड है। मतलब बहुत ह्यूमिलिएटिंग सी फीलिंग होती है कि नहीं, आपका
भरे बाजार में बाजार में। मजाक बन जाता है आपके इमोशंस का। और पता है, जब पर्सनल लाइफ में होता है ना, फिर भी गिने चुने लोगों को पता होता है। जब टीवी पे होता है ना, तो पूरी सबको दुनिया मजाक पता। आई उड़ाती नो। है। तो समझ नहीं आता कि खुद के लिए बुरा फील करो या खुद के लिए अच्छा फील करो। बुरा फील करते तो दुनिया कहती है विक्टिम दिखा रहे हो खुद को। अगर बिल्कुल रिएक्ट ना करो तो कहते हैं कि पहले शो में तो इतना रिएक्ट किया, दूसरे शो में ये क्यों रिएक्ट ही नहीं? नहीं कर रहे हो। तो मेरे लिए तो ये अलग ही टाइप का फीलिंग है कि मैं एक्सप्रेस करूँ तो कैसे करूँ। तो नायरा, ये हार्ट ब्रेक अपार्ट फ्रॉम रोडीज और स्प्लिट्स विला को हटा के हुँ। रियल लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है क्या? कितने यार, कितने। मेरा तो लव लाइफ ही इतना डब रहा है ना, जैसे मैंने रोडीज में भी बताया था दैट इन द मिडल ऑफ द किस द मैन सेड दैट इट फील्स लाइक आई एम किसिंग अ मैन। ये भी मेरे साथ हुआ है, एंड आई हैव बीन चीटेड ऑन थ्राइस इन माय लाइफ विद थ्री अपार्ट। डिफरेंट पीपल। एंड ये सारे केसेस में, पता है, मेरी लाइफ में एक कॉमन चीज रही है कि जितने लोगों ने गलत किया है ना, ये सारे खुद ही आए। मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये लोग कहते हैं मेरे लिए कि आई एम डेस्परेट फॉर लव और आई एम डेस्परेट फॉर अटेंशन, ऑल दैट, बट मैं कभी गई ही नहीं इन लोगों के पास। ये लोग खुद चल के मेरी लाइफ में आए। तो मैं कभी नहीं गई। तो तुम्हें एक पोजीशन में डाल दिया जहाँ पे यू एट अ पॉइंट यू आल्सो स्टार्टेड फीलिंग समथिंग फॉर देम एंड या उन लोग चले गए फिर उस एंड फील्ड से। अभी पता है, इसका एक ड्रॉबैक मेरी लाइफ में ये हो गया है कि अब जैसे क्या होता था कि ये दोनों तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। एक लड़का ऐसा भी आया था कि ही केम इन माय लाइफ एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैड लाइक रियली बैड ब्रेकअप, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। ही पुट एफर्ट्स फॉर मंथ्स। अब मैं बोल रही हूँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। सो अब फिर पता है क्या होता है कि अगर आप वो टाइप की लड़कियाँ नहीं हो ना जिनको मज़े लेना पसंद है लड़कों के, आप लिटरली फ़ील यू करते हो फील किसी के लिए समथिंग। बुरा, तो आपको ना बुरा लगने लगता है कि यार ये इंसान इतना आपके लिए कर रहा है, आप तो भाव ही नहीं दे रहे हो। तो आप ना थोड़ा-सा वो करने लगते हो कि ठीक है, एज़ अ फ्रेंड इसे। और वो करते-करते ना वो जो डोर ओपन होता है ना, वो फिर और ओपन होता जाता है। फिर आप उस इंसान की अच्छी चीज़ें देखने लगते हो, बुरी चीज़ें फिर साइडलाइन होने लगती है। और फिर इतने एफ़र्ट के बाद ना जब आपको दिखता है कि यार एक इंसान इतना अच्छा है, आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, सब कुछ है, और आप क्यों नहीं चाहेगा कोई एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में? आपको ये नहीं पता होता ना आगे जाके एक्चुअल क्या कोई होगा? और होगा वो इंसान। आप तो उस चीज़ में रहते हो। तो फिर जब आप अपने गार्ड्स ड्रॉप डाउन करते हो और फिर जब आप उस इंसान को अंदर करते हो ना, फिर प्रॉब्लम होती है। तो वो इंसान ने वही किया। इतने महीनों तक उसने एफर्ट्स लगाए एंड मैंने गार्ड ड्रॉप डाउन किए। मुझे याद है मेरे लिटरली आँखों में आँसू थे। मैंने बोला दैट आई एम रियली हर्ट इन माय लाइफ, प्लीज़ डू नॉट हर्ट मी। आई एम ड्रॉपिंग माय गार्ड्स डाउन, प्लीज़ डू नॉट हर्ट मी एट ऑल। I remember I was crying. He hugged me and he said that I'll be the last person to hurt you. And that moment was so good. Everything went good. And after several months, that person started asking me to get married. So I was I think 23, 24. I Oh said, my I'm god. too young. I cannot. I have a long life ahead. It's not that I don't want to, but I need some time. And अभी कुछ महीने ही हुए हैं। Absolutely. But that person kept on forcing, and that person was loving me so much कि मुझे फिर ये भी डर लगने लगा कि just because of marriage thing I'll lose that person in my life, because he was at that age that he was supposed to get married. He was at Okay. that age. Okay. तो मेरे को वो समझना भी था, तो मैंने literally अपना गार्ड और डाउन किया। I agreed to get married even though I did not want to. I did not want to. I agreed saying कि I will lose a good guy, so कर लेते हैं। Hmm. एंड भगवान का शुक्र है भाई कि नहीं नहीं हुई शादी। कि पता चला कि he was already having another woman in his life and from years। एंड यू डिड नॉट नो वो थ्रू आउट द रिलेशनशिप कितना टाइम रिलेशनशिप चला था वो? आई थिंक 4-5 months हुआ होगा। अब यू हैड ज़ीरो आइडिया अबाउट। ज़ीरो आइडिया ब्रो, ज़ीरो आइडिया। बिकॉज़ मैंने कभी फ़ोन चेक वेक किया नहीं, कुछ किया नहीं। एंड वियर्डली, मतलब एक होता है ना कि जब वो एफर्ट्स लगा रहा था मेरे लिए, वो ऑलरेडी किसी और के साथ था। तो यू मीन टू से था मतलब रिलेशनशिप में था तो दे वर मैरिड? सम अफेयर, सम अफेयर। सम अफेयर विद सम लेडी, आई एंड डोंट नो। ही वांटेड टू गेट मैरिड टू Yeah, यू। because that lady could not marry him and he ओह wanted a माय stability. So गॉड! मेरे को, मतलब अब आप एक सोचो कि जिस इंसान के साथ इस लेवल तक का गंदा हो रखा है, वो कैसे दोबारा प्यार में पड़े, कैसे चीज करे। सो नायरा, इन दैट केस हाउ डिड यू मूव ऑन फ्रॉम दैट? लाइक मूव ऑन कैसे हुए हो? Dude, क्योंकि was दिस इज़ difficult. बिकॉज़ गोइंग थ्रू दिस एक माइंड में ना एक वो आ जाता है कि अब मेरे को सामने कोई नहीं चाहिए। मेरे को किसी के साथ नहीं जाना है, मैं किसी के लिए गार्ड डाउन मैं नहीं कर नम हो सकता। गई थी शैंकी। आई रिमेम्बर ये इंसिडेंट मुझे इतना पर्टिकुलरली याद है कि जब वो सब हुआ था, जब भी सब चीटिंग वीटिंग व्हाटएवर जब हुआ, मैं बहुत रोई, मतलब जितना रो सकती थी। फिर एक पॉइंट के टाइम के बाद मैं नम हो गई, मुझे फील होना बंद हो गया था। तो मेरे रूममेट्स बोलते थे कि रो ले, थोड़ा रो ले, तेरे को हल्का फील होगा।
मतलब जिस दिन से मैंने कट ऑफ किया था ना उससे, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ फ़ील ही नहीं करना है। पता नहीं वो वैम्पायर डायरीज़ में एक होता है ना स्विच ऑफ वाला बटन, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आ गया कि मैंने लिटरली वो बटन पता नहीं कैसे क्या कर लिया कि मुझे रोना ही नहीं आया। मैं रो ही नहीं पा रही हूँ और वो ना अंदर क्लॉग होता गया एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। मैंने थेरेपी लेना स्टार्ट की और उसी बीच में मुझे किडनी स्टोन हो गया। फिर मेरा पूरा मतलब मेरी हेल्थ भी खराब हो गई, मेंटल स्टेट भी खराब हो गया। थेरेपीज़ के भी पैसे जा रहे थे अलग वो, मतलब मैं इतने गंदे स्टेट में थी कि आई थिंक मुझे 2 महीने तो लगे, प्रॉपर 2 महीने टू मूव ऑन। टू नॉट मूव ऑन बट टू बी एबल टू क्राई अगेन। ओह माय गॉड! आई रिमेंबर मैं नहीं रो पा रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी रुलाने की खुद को, बट आँसू ही नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे सबने बोला था यू हैव टू क्राई एल्स इट विल इट बी विल बैड फॉर यू। फॉर श्योर। सो आई रिमेंबर कि पता नहीं कोई ऐसा दिन था जिस दिन मुझे कुछ फ़ील हुआ, मैंने उसकी फ़ोटो देख ली या पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ एंड आई कॉल्ड माय फ्रेंड एंड आई क्राइड सो बैडली एंड माय फ्रेंड सेड दैट आई डोंट नो वेदर आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट और सैड बट आई एम हैप्पी दैट यू आर वी आर क्राइंग। क्राइंग। मतलब वो इतना गंदा फ़ेज़ था। उसके बाद लाइक आगे कोई तुम्हारी लाइफ में आया, सो वाज़ इट डिफिकल्ट टू पुट डाउन योर गार्ड्स अगेन? It was difficult. It's still difficult now. It's so difficult. Like even when I talk to someone now and the person says that, "Oh, I like you," मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है यार, झूठ बोल रहा होगा, ये भी वही चीज करेगा। एंड अब मुझे जब कोई शादी का बोलता है ना तो मेरा अलार्म बजने लगता है कि one guy literally asked you to get married and you were on the edge of that and that happened. So हुँ, there is no guarantee कि ये शादी का बोल रहा है तो ये भी ऐसे ही करेगा। तो मतलब इट्स डिफिकल्ट टू फॉल इन लव फॉर मी शैंकी। लोगों को लगता है कि मेरी चीज़ों को लोग प्यार का नाम देते हैं, जो भी 2 शो में बना वो प्यार नहीं था। आई हुँ, थिंक इट वाज़ जस्ट माय ट्रॉमा बॉन्डिंग, इट वाज़ जस्ट माय अटैचमेंट, इट वाज़ जस्ट माय वे ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस हैप्पीनेस। इन व्हाटएवर आई कुड। In a crowd, when you find that one person who is actually little या, concerned about you, you या, start feeling something for them, but that दैट्स you व्हाट। won't call love all the time. या इट्स नॉट लव, लव इज टोटली डिफरेंट यार। जैसे आप प्यार करते हो ना उससे आप इस तरीके से लड़ भी नहीं सकते जैसे मैं हुँ, लड़ी हूँ ना शो में जिसके भी साथ जो भी है। लाइक मेरे एक्सेस रहे हैं तो जिस एक्स का मैंने एक्चुअली सोचा था कि वो शो पे आएगा, मैं नहीं लड़ पाती अगर वो आता तो। एब्सोल्युटली। मैं लड़ ही नहीं पाती बिकॉज़ दैट द पर्सन आई लव्ड। सो इफ यू लव समवन ना मतलब आप उस लेवल पे जाके वो चीज़ कर नहीं पाते और अगर आप करते भी हो ना, आपको बहुत बहुत बुरा बुरा फ़ील लगता होता है। है कि आपने क्या कर दिया। मैं लड़ी भी हूँ ऐसा नहीं है बट अपने एक्सेस के टाइम में मुझे रिग्रेट ही हुआ है। तो अभी इट्स लाइक आई डोंट वांट टू फॉल इन लव। आई एम टू स्कैर्ड एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर लविंग फ्रेंड्स होते ना, तो शायद मुझे ये खराब लड़कों में वो चीज़ें ढूँढनी नहीं नहीं पड़ती। पड़ती, वो फ्रेंड मेरे से मिल जाती। फ्रेंड्स भी ऐसे रहे हैं ना कि बॉम्बे में रहती थी, तो बॉम्बे में भी ऐसा होता है ना फ्लैटमेट्स फ्रेंड बन गए। बट देन वैसे फ्रेंड नहीं होते जो आपके साथ थ्रू आउट रहे हो। मैं कॉन्स्टेंटली मेरे करियर स्ट्रीम चेंज हो रही है, मेरी सिटीज़ चेंज हो रही है। तो एक स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में रही नहीं कि एक स्टेबल फ्रेंडशिप रही हो एब्सोल्युटली। कि हाँ, ये है। आई हैव ओनली वन फ्रेंड, दैट वन फ्रेंड जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ एंड आई एंड यू हैव वुड केप्ट इट वेरी प्राइवेट। very private, no one knows about her. She's that only person, you वेरी know, नाइस। who feels like home to me and I can never ever share about her on any platform because I'm so scared कि एक evil eye लग गया ना, I will lose that friend. आई नो। So इसलिए मुझसे कोई पूछता भी है, tell people I don't have a best आई friend. I have, but that person is under some, तिजोरी कि वो नहीं करना है. But सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ yeah, but बेसिकली। then I don't have that male friend per se कि मतलब जिससे मुझे वो, ऐसा हो कि लव नहीं हो वहाँ पे, फ्रेंडशिप ही हो बट दैट होम फीलिंग इज़ देयर, तो मुझे वो किसी पार्टनर में ना ढूँढना पड़े। द प्रॉब्लम इज़ कि वो चीज़ फ्रेंड्स से नहीं मिल पाई ना, फ्रेंड्स के लिए भी यार आई डू अ लॉट, आई लिटरली गो हियर एंड देयर, डू एवरीथिंग बट पता नहीं मेरे फ्रेंड्स हमेशा से ऐसे रहे हैं कि दे वर नेवर थैंकफुल, दे वर नेवर दे नेवर अप्रिशिएटेड फॉर द थिंग्स दैट आई हैव डन फॉर देम। सो अभी मेरा ऐसा हो गया कि मुझे फ्रेंड्स भी नहीं नहीं बनाने। बनाने। मतलब अब मेरा ऐसा है कि ओनली एंड ओनली इफ यू गिव मी देन ओनली आई विल बी एबल टू गिव यू एंड आई विल कॉल यू माय फ्रेंड। अब मेरा गिविंग वाला खत्म हो खत्म। चुका है। आई थिंक यू हैव रीच्ड दैट पॉइंट इन योर या, लाइफ कि
अब मेरा हो गया यार. So Now don't come exhausted. with your baggage, don't come with your things. If you are coming, come as a genuine person to me यार and just शैंकी वैसा भी नहीं है पता है. इट्स लाइक इफ यू विल बी माय फ्रेंड, इफ यू विल कम विथ योर बैगेज, आई विल होल्ड योर बैगेज, आई विल बी देयर फॉर यू. बट अगर मैं आपसे 10 बार पूछती हूँ ना कि आर यू ओके, डू यू नीड तो बता एनीथिंग, दो. एक बार तो मुझसे पूछ लो इन रिटर्न दैट आर हम्म, यू ओके. मेरे को याद ही नहीं है, मतलब मेरे गिने चुने एक दो दोस्त ऐसे वही ध्यान रखते हैं. और वियर्डली स्ट्रेंजर्स इंस्टाग्राम पे दे चेक अप ऑन मी, लाइक दे लिटरली टेक्स्ट मी कि wow. कभी मैं अगर स्माइलिंग फोटो डालती हूँ ना तो वो नोटिस करते हैं कि नायरा इज हैप्पी टुडे. एंड आई गेट मैसेजेस कि आई एम सो हैप्पी टू सी यू हैप्पी. ये स्ट्रेंजर्स मुझे लिखते हैं बट मेरे फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड्स नहीं लिखते. लिखते. वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि खुश है या क्या है, उनको कुछ काम होगा, कुछ होगा. आई नो तो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एंड रीचिंग दिस स्टेज लोगों को या बहुत कुछ काम निकालना होता है. दैट्स व्हाट. एंड जेन्युइनली आई फील लाइक, मतलब मेरी लाइफ में ना अब सिर्फ उन्हीं लोगों की जगह है जो मुझसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि नायरा तू ठीक है कि नहीं. आई डोंट वांट यू टू कम एंड बी देयर फॉर एब्सोल्युटली. मी. जस्ट अ जेन्युइन थॉट इन योर माइंड अबाउट मी कि यार एक बार मैं पूछता हूँ या पूछती हूँ कि नायरा ठीक है कि नहीं. आई थिंक देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इससे मेरे को याद आया. सो ही इज इन यूएस. ओके, वी वर हियर इन बैंगलोर, सो ही वेंट आउट फॉर स्टडी. इट्स बीन 1.5 years नॉट कम बैक टू इंडिया. तो मतलब हम लोग ना रोज बात नहीं करते हैं नायरा, ठीक है. बट सडनली नो मेरे को किसी दिन उसकी याद आ जाती है. आई विल जस्ट टेक्स्ट हिम कि आई होप यू आर डूइंग फाइन, आई होप कैसा है, आई जस्ट या मिस्ड यू. एंड आई या थिंक इट इज वेरी अंडररेटेड टू टेक्स्ट योर फ्रेंड्स लाइक आई मिस यू या समटाइम्स या एंड all of this. So I have started taking that from doing that for myself कि मैं अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर देता हूँ, I miss you यार, come back soon. That's all. You don't need a long message, you don't need a या 1 hour call. या दैट्स व्हाट, जस्ट दैट आई मिस्ड यू. आई मीन मेरे को मेरे स्कूल फ्रेंड्स की भी याद आती है, वो भी कभी कभी मैसेज करते हैं तो मुझे लगता है चलो आई एम देयर इन देयर थॉट्स, आई एम नॉट एबल टू मीट देम. और मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं इतना वुंडेड हो चुकी हूँ ना कि मैं अपने ही पेन संभालने में इतनी लगी हुई हूँ कि मैं खुद भूल जाती हूँ दूसरों से I know, पूछना. I know, तो I know. बट मुझे लगता है अगर आप मेरे सामने हो ना, अगर आप मेरे आसपास हो या मुझे आपकी सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि आप सैड हो या आप मुझसे कभी कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है कि ये मेरा फ्रेंड है, मुझे उसके लिए रहना है. Hmm. बट अगर आपको दिख भी रहा है कि आई एम गोइंग थ्रू शिट, बट यू आर नॉट चेकिंग अप ऑन मी, दैट्स रियली बैड. आई मीन दैट्स, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आई नेवर वांट इन माय Never want. लाइफ. और वही वैसे दोस्त मुझे मिले हैं, मतलब शोज में टचवुड 2-3 लड़कियां हैं जो ऐसे हैं अच्छे जो फ्रेंड्स अच्छे हैं. हैं, लाइक कशिश इज देयर, शुभी इज देयर, इशिता इज देयर, रूरू इज देयर. दे ऑल, लाइक अभी जब मैं गायब हो गई थी सोशल मीडिया से अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो एवरीबडी लाइक दे चेक्ड ऑन मी कि ये कहाँ गई कहाँ अचानक गई से. ये अचानक. और जिनको मैं इतना फ्रेंड फ्रेंड शो में बोलती थी मेरी प्रायोरिटी ये वो, दे डिड नॉट इवन बॉदर टू ड्रॉप अ टेक्स्ट कि भाई ये कहाँ चली गई, कहाँ या गई. चलो तुम्हें पता भी है कहाँ चली गई, एक मैसेज होता है ना कि दैट आई एम देयर और Absolutely. कम बैक सून और आई विल मीट यू, ऑल दैट, मतलब बेसिक जेस्चर जो होते हैं वो नहीं मिले. तो आई थिंक इन माय लाइफ आई एम डन विद फ्रेंडशिप एंड लव एज ऑफ नाउ. That is amazing and या that is very heartfelt. With that, Naira, I think इतना कोई तुम्हारे बारे में अभी तक जाना नहीं था, ठीक है. या एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि हम लोग आज लाइक वी आर नॉट, we have spoken about the show, we have spoken about other things, but we have spoken about you all together. या And I'm so happy to know all of those things. And वो कोई कोई एपिसोड तब तुम शूट करते हो तो there is a little आई नो. कि oh my god, this is what I wanted. Like because या I want people to come sit here and just share things, and you did that. या I'm so glad and so happy for you, And whatever I'm you're doing. glad that you're doing a podcast where people are able to share their emotions, because I'm tired of going to shows talking about controversies and Hmm. drama. I mean, I want people to ask who is Naira instead of who is this other I know. person, Hmm. shows के बारे में. तो I'm glad and I genuinely want people to know me, because लोगों ने ना शैंकी मेरे बारे में एक image बना ली है. that ये तो लड़ती है, ये तो बैड एज है, ये तो ये. बट मैं हमेशा ये बोलूँगी कि हमेशा रोडीज़ के इनिशियल एपिसोड्स देखो जाके. तब दैट पता वाज़ चलेगा. दैट्स द इनर नायरा दैट could not come out Come on. and will never come out, because that Naira is too scared to come out, because that person is weak, vulnerable. But that's the other side of me. I'm Hmm. not ready to fight every time. There are times that I just don't want to fight. I literally want somebody to hug me and treat me like a baby कि ये बच्ची है छोटी सी, ये Hmm. बैड एज नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये बच्ची है बच्ची. छोटी सी, एंड इसको प्यार से ट्रीट करो. मैं वो इंसान भी हूँ. तो आई थिंक विथ मोर शोज, इफ आई डू विथ मोर प्लेटफॉर्म, आई बी एबल टू टेल पीपल दैट देर इज अ डिफरेंट नायरा दैट पीपल शुड नो ऑफ. So with that, Naira, we come to our या very last part, ओके. which is
The rapid fire round sponsored Okay. by the Backstory store. Okay, Okay. so Okay. इसमें क्या है rapid fire round में? You have to keep your answers as short as possible. जो दिमाग में Okay. पहले आ रहा है, just Okay. say it. Okay. Okay, Okay. Okay. it's like a one-liner. Whatever comes to your mind, you just Okay. say it. Okay. Rapid fire round. Are you excited? Not really, but ठीक Rapid है. fire round sponsored by the Backstory store. Okay, Okay. here's your first question. If you had to choose one show, Okay. which would it be? Roadies or Splitsvilla? Splits. Wow. If you could have an idol match apart from Digvijay in the villa, who would it have been? Of course, Arbaz Ole, because that was the only person I connected with and I wanted to go ahead with. Great. Your favorite pair in the villa? One I cannot say. I'll say two. It's Divyansh and Devangini and Khanak and Adit. Cute. I love Yeah, Khanak I and Adit. love both of them. I love Yeah. Khanak and Adit. If you could eliminate one pair from the villa, who would that be? Oh God, tough. Hmm, I don't think so. I would. Mm, Not pair. I would eliminate A a person. person Arbaz from the show. Oh my Yeah. god. You know that is very contradictory. You just mentioned, okay, अगर मेरे को आइडल मैच बनना होता I तो मैं know, अरबाज के right? साथ I बनती. know. And see, अगर logically देखे तो वो चला जाएगा तो मेरा गेम वीक हो जाएगा. But then अब ठीक है यार, ठीक. अंदर से वही कॉलिंग आया मुझे. Okay, the whole world is listening to you right now. Yeah, The whole world. yeah. What is that one thing you would want to tell them? Um, I would say one thing. It will be little long, but I want to say that I'm sure जो मेरे साथ हुआ है वो काफ़ी लड़कियों के साथ हुआ होगा, लड़कों के साथ भी हुआ होगा. I'm sure and हमें ऐसा लगता है कि हमारा मजाक बन गया, हम जोकर लग रहे हैं दुनिया के सामने एंड जो हमने किया वो गलत किया, हमें गार्ड्स ड्रॉप डाउन नहीं करने चाहिए थे. I would just say that don't think that you were wrong or you did wrong. It was not your fault that somebody came out like that, somebody did that to you. It's their thing, no, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने देखा है लाइफ में. This is not how you were brought up, right? This is not what you do. So आप अगर सिचुएशन ही वैसी मिली है जब आपको पता ही नहीं किसी के बारे में, तो आपका जो गट फीलिंग होगा वही करोगे. अगर आपने अपनी गट फीलिंग की नहीं सुनी होती तब भी आप डिलेमा में होते कि नहीं मैंने वो नहीं किया जो मेरे दिल ने कहा. So I think if anything has happened with you, it's all right. You take a lesson, go ahead. And it's weird of me to say that, but please do not close the door for love. Wow. Yeah. That is the most beautiful line, I It's a think. beautiful thing, you know. It's a beautiful feeling to fall in love, to love someone, to be there for someone. But I would just say that be cautious, learn from your lesson, and guards थोड़े up रखो and drop down करो 10 चीजें देख के. मतलब ऐसा नहीं थोड़ा सा हो गया तो you just felt like okay this is the right person. Take your time, but don't be this hesitant कि नहीं यार मेरे साथ हो गया है तो अब मुझे करना नहीं नहीं. है. I know it's exhausting, but I think it will be a phase. Like मेरे साथ भी अभी ऐसा है कि for some time I'll be exhausted. I'm Hmm. saying that I don't want love, I don't want friendship, but by the time I'll heal, I think I'll be In a back better place. back and then I'll be like I think I want love now. So it's okay, take your time, move on, but do not close the door for love. Amazing answer. What's one reality show you really want to be a part of across the world? Big Boss. Not because of fame, but because I think the amount of money I'll generate, I will be able to ask my dad to stop working. I genuinely want them to Very good. live a better life. So only and only because of that, I mean, if not Big Boss, any show that gives me good amount of money so that I can buy a house for my parents and ask them to settle down there. Very That's it. respectful. Very Yeah. respectful. Last question. Last question. Okay. One thing that if you would hadn't done acting or anything, what would you have been? That's so even I don't know, as my destiny had been taking me to 10 number of designations and field. But one thing that you really would have wanted to be अगर ये acting नहीं होता तो. Acting नहीं होता तो I think it's a tough call. I mean, either I would have been doing modeling, but then मुझे लगता है वो ज़्यादा लंबा मैं करती नहीं because the kind of body type they want, I could not be and I cannot starve myself forever.
So the only thing would have been left with me was creative direction or direction. Wow. So I think, my senior, the person I had worked with who had taught me everything, he used to tell me that if you'll work hard, you'll be that good looking director in the Oh industry. my God. So he had faith in me. So I think maybe I would have been a good director. Amazing. Yeah. Amazing answers, Naira. With that, we come to an Yay! end of this Yeah. rapid fire round Yeah. sponsored by Backstory Store. We have Yeah. a cute little hamper for you. Oh, nice. I love that part. Yeah. So this bag is to peace out in life with whatever Wow. you are going through. So Okay. this for you. Thank you. You can I quickly need check. this peace in my life for sure. थोड़ा peace तो अभी आ गया है. Like I'm in a better Right. place right now. So yeah, it's cute. Thank you so much. And No, it's from your own store, yeah, right? so this from my own store called the Backstory Store. We Yeah, do a I know, lot I of know. hampers, customized gifts, Yeah, and other things for yeah. everyone. So if you are looking for something like that, go For check out the sure, for Backstory Store. sure. Please, people, whosoever follows me, whosoever loves me, go check out his store. Great. With that, Naira, Yeah, we are almost towards the end of the podcast. yeah. एक मैसेज Hmm. आपके क्यूट 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 फॉलोअर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? यार मेरे बहुत ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग है नहीं। तो जो गिने-चुने हैं लोग जो बहुत प्यार करते हैं उनको यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी थ्रूआउट फ्रॉम रोडीज़ टिल हियर। जो कुछ लॉयल नहीं थे वो रास्ता भटक गए, उन्होंने रास्ता बदल दिया कि रोडीज़ में तो हमें पसंद थी, स्पिरिट्स में नहीं है। बट देयर वर पीपल हू हैड फेथ इन मी, हू बिलीव्ड इन मी, हू वर टॉकिंग टू मी, हू न्यू दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। जो चीज़ें दिखाई नहीं गई, जो मेरी बातें थी वो उन्होंने उस चीज़ पे भी बिलीव किया। सो इट्स ओनली फॉर देम दैट thank you so much for being there with me, for fighting for me in comment box and in terms of everything, and for making all these cute edits, and for being just, I think, for just being there with बीइंग me. देयर That's it. I mean, I'm really thankful. वो भले गिनती के 4 लोग हो, 5 लोग हो या 1000 लोग हो, वो बहुत important हो, आप जितने भी हो, and just I'm so thankful. Great. And if you have any questions, anything that you want to ask Naira, please comment karo and Naira and I are going to answer all your Yeah. questions. Yeah, for sure. Great. With that, thank you so much, Naira, for Thank coming. you. As I said, you always look pretty. Okay. And I don't want to say you are a strong woman. I just want to say you are a beautiful human. Thank Okay. you. That whatever you are showing, for whatever reason, whatever you are behind the camera, you are in front of the camera. Respect for all of those things. Thank you Thank again for you. coming. Thank you. I hope you enjoyed this episode. For more related content, don't forget to subscribe, like, and share this content with all your friends and family. And also, you can check us out on Instagram by the name The Backstory. With that, if you have any questions to ask Naira about Splitsvilla, Roadies, or how you can be a part of it, don't forget to comment below because we are going to answer all your queries. Until then, see you